जी पिछले लेक्चर में अगर कोई सवालात हैं तो प्लीज़ पूछ लें. लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप. हमने लास्ट टाइम जो देखा था वो ये देखा था कि मशीन लर्निंग मॉडल इवेंचुअली इज़ अ फंक्शन. डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टास्क यू आर गोइंग टू परफॉर्म, ये फंक्शन जो है इसमें यानी सो इस फंक्शन की खासियत होगी कि आई मीन जनरेट सम आउटपुट. और ये जो W's हैं दीज आर पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन, and this xi is input feature vector and yi is the target. Can be a vector, can be a scalar. और हमने ये भी देखा था कि these W's are basically the settings or the parameters that you really need to find out for the best performance. और performance का measure हमने लिया था loss function. So जो actual value है और जो आप predict कर रहे हैं how far they are, you want to minimize those. And whatever settings that minimize those are the best parameters. अब इसमें ये भी देखा गया था कि महज ट्रेनिंग एरर को कम करना या ट्रेनिंग लॉस को कम करना may be a disaster. And the reason for that is you can always come up with a complicated model, a model with many more parameters, and that model will be able to fit the data exactly or approximately exactly, and then your training error will be very small. But the problem with that is that model may not generalize to unseen data, and this phenomena is known as overfitting. Last time we discussed this. Okay. To avoid overfitting, one way is to increase much more data. Another way is to use a simple model. And the third way that I discussed last time just very quickly was to use regularization. Although deploy a complicated model, but restrict the parameter ranges to not go freely everywhere. If your parameters are free to choose any value, then the parameter space is big and your model is much more flexible. So the other way is to apply a loss function, and along with the loss function also restrict the parameter values ranges to not go everywhere. And for that, for example, we define a cost function or error function maybe, that is kind of a loss function with the predicted value and the true value. So this is the prediction, this is the true value, and this is the loss of ith example, and plus some sort of restriction on the parameters. For example, this restriction. This restriction says that the parameter values, they should not be very high. If I want to minimize this whole thing, I really want to minimize this value as well. So I'm not only interested in minimizing the training loss, I'm also interested in that the parameters, they should not be free to choose any big value. If the value of the parameters stays in very small ranges, then the model is not that flexible that we initially thought of. And so the model is simple as compared to without this factor. The model is complicated. With this factor, the model is restricted. And this is called regularization, or one way of imposing simplicity on the model. Okay. Okay, now it may be possible sometimes that you want, now the error function or the cost function actually is composed of two terms, the training loss and the simplicity parameter that you want to impose on your model. Now, because of these two terms, one term may be weighted higher than the other one. So to make a balance or to choose one term's contribution lower or higher than the other, we also deploy a parameter here, lambda, which is sometimes known as the regularization parameter. If this parameter is higher, then we really want a lot of simplicity in the model, a lot of regularization. If this parameter is low, then we actually want this to go as low as possible, even if the model stays complicated. इसको जरा इस तरह से देखें कि मेरे पास ट्रेनिंग एरर है 20, let's say, और मेरे पास ये जो
W transpose W है, which is just the squared sum of all parameters, W1 square, W2 square, W3 square, and add them up. That is sum of all squares of all the parameters. If that value is, let's say 50, and this is the total error, okay, then what? And अगर मैं lambda को apply कर दूं इधर, अगर मैं lambda को कह दूं let's say 0.1, तो अब आप total error देखेंगे, that is 20 plus 5, which is 25. Okay, that's the total error in this particular case. जो भी training error है और जो भी है, अगर मैं ये lambda की value increase करता जाऊं, if I increase this lambda value, you will see कि lambda की value increase होने की वजह से ये जो factor इसके साथ multiply हो रहा है, इसकी वजह से ये जो error है, ये जो total error है, this will start increasing. To stop this explosion due to the larger value of lambda, I have to somehow decrease this particular value. Make sense? And that's precisely the reason. If you have lambda higher value, that restricts W transpose W to stay smaller, regardless of the training error. और अगर आपकी lambda की value कम होगी, then whatever the W transpose W is, it doesn't matter. Focus on the training loss. So these two terms, they are associated with this lambda, and lambda is again a hyperparameter, starts from 0, and there is no endpoint. कितनी regularization आपने apply करनी है, you keep on moving on that. Yes? Make sense? So yeah, so और चूंकि ये लैम्डा हाइपर पैरामीटर है, इस लैम्डा की वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मली वी अप्लाई वैलिडेशन प्रोसीजर्स. यानी हम एक मॉडल ले लेते हैं, हमने अगर लॉस फंक्शन फिक्स कर लिया है, मॉडल फिक्स कर लिया है, और बाय द वे ये जो रेगुलराइजेशन फंक्शन है W ट्रांसपोज W, दैट इज वन रेगुलराइजेशन फंक्शन. There are so many others. This regularization function is known as ridge regularizer. There are so many other regularization functions. और अगर आप लीनियर रिग्रेशन में रिज रेगुलराइजर ऐड कर दें, लीनियर रिग्रेशन का जो लॉस फंक्शन होता है स्क्वायर्ड लॉस, उसके अंदर अगर आप रिज रेगुलराइजर ऐड कर दें फॉर रेगुलराइजेशन, द होल स्कीम इज नोन एज रिज रिग्रेशन. Although it's a linear regression plus a ridge regularizer, but that term normally is flown out like ridge regression. It's a linear regression with least squared error, but the regularizer is ridge regularizer. There are other regularization functions as well. अब जरा ध्यान से कीजिए कि कौन कौन से हाइपर पैरामीटर्स हैं जो हमने चूज करने हैं. मॉडल क्लास कौन सी होगी? दैट इज वन हाइपर पैरामीटर. लॉस मॉडल क्लास मीन्स 2 डिग्री पोलिनोमियल होगा, 3 डिग्री पोलिनोमियल होगा, 4 डिग्री पोलिनोमियल नहीं होगा, कोई और फंक्शन होगा, न्यूरल नेटवर्क होगा, क्या होगा? That is one hyperparameter that we have to decide. After deciding this, we have to decide what loss function we are going to choose. There are so many loss functions out there. That's another hyperparameter. The third hyperparameter, if you want to apply regularization, what should be the regularization function? It's a ridge regularizer. It's absolute regularizer भी होता है जिसको L1 regularization भी कहते हैं. There are so many others. That's another hyperparameter. And one other hyperparameter is कि regularization की contribution कितनी होगी, which is this value lambda. So there are a lot of hyperparameters. Once you choose all of these, then you are able to start finding out the best parameters W. So W's को find out करने के लिए जो procedure आप चलाना चाहते हैं, training procedure, वो चलाने से पहले जितने भी decisions आपने, जितने भी choices आपने लेनी हैं, they are all hyperparameters. Make sense? Any questions? Okay, great. So that's all. I mean, that's what machine learning basically is. अब आप कौन सा मॉडल चूज करेंगे, कौन सा मॉडल चूज नहीं करेंगे? जी सवाल है. सॉरी सर, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है. हम कर्व फिटिंग की बात कर रहे थे अभी. चाहे कर्व फिटिंग कर लें, चाहे आप क्लासिफिकेशन कर लें, either way. Okay, so right. I have not defined a particular role of this function. Okay, great. Now, what model to choose is really kind of a big thing. मिसाल के तौर पे मॉडल कौन सा चूज करना है, इसकी चॉइसेस मैं आपको फेमस चॉइसेस बता देता हूँ.
जो लोग अक्सर यूज करते हैं। एक मॉडल जो बहुत ज्यादा यूज होता है दैट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। Although its name is logistic regression, it is really a classification model. मैं आपको जो अभी मॉडल्स बताई जा रहा हूँ, जितने भी बता रहा हूँ, they are for classification. Logistic regression model, that is very famous model. Most of the people use this model. And this particular model, यानी इसकी खासियत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं और आपके पास कुछ डेटा है, let's say of this kind, then logistic regression will find out a boundary, a classification boundary, which ensures that all the points, they are very far away from the boundary, all the points. So basically, it maximizes the distance from the boundary to all the points of different classes. It tries to fit a boundary, a linear boundary, such that all the points, they are as far away as possible from the boundary. Obviously, by taking care of that one class points, they are on one side of the boundary, the other class points are on the other side of the boundary. By having this, it tries to maximize the distance of points from the boundary as far away as possible. That is logistic regression. Okay? और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप जिस स्पेस में काम कर रहे हैं, लेट्स से जो भी फीचर स्पेस है, उसमें लीनियर बाउंड्री फिट करना पॉसिबल नहीं होता। यानी ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि कोई भी ऐसी लीनियर बाउंड्री आप ले आए कि वो अच्छी क्लासिफिकेशन कर रही हो। देयर डज नॉट एग्जिस्ट, उसको कहते हैं नॉन लीनियरली सेपरेबल केस। ऐसा केस जो लीनियरली सेपरेबल ही ना हो, जिसको किसी भी लीनियर मॉडल से सेपरेट ना किया जा सकता हो, उस केस में हम करते ये हैं कि अपने फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक नई स्पेस के अंदर। मिसाल के तौर पे हमारे पास फीचर हैं, दो फीचर्स हैं x1 एंड x2 लेट्स से, तो मुमकिन है हम नए फीचर्स बनाएं z1, z2, z3, z4 लेट्स से, by applying some function on these x1 and x2 and come up with the new features. For example, z1 might be x1 square, z2 might be x2 square, z3 might be x1, x2, and z4 might be x1 plus x2, for example. Sorry? Backtrack नहीं हो सकता, नहीं। You can, हाँ, आप नई, अगर आपका गोल है अपने ओरिजिनल फीचर्स को फिक्स करना, देन आपको ट्रांसफॉर्मेशन वो ढूंढनी चाहिए जो इन्वर्टेबल हो। नॉर्मली ये ट्रांसफॉर्मेशन तो इन्वर्टेबल नहीं होती जो आप स्पेस टू स्पेस करते हैं, और ये इन्वर्स होती नहीं है। और चूंकि गोल वहां पे सिर्फ बाउंड्री फिटिंग होता है, गोल वहां पे ओरिजिनल फीचर्स को कीप करना होता भी नहीं। नहीं, जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है आप किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं। और दुनिया में तो बहुत सारी इन्फिनिटली मैनी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। यू हैव टू कम अप विद अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट एक्चुअली मेक दिस सेपरेशन मोर क्लियर। ठीक, सेपरेशन को बढ़ाएं। ओके, सो अब आप एक नई स्पेस में चले गए हैं, तो होप ये होती है कि इस नई स्पेस के अंदर, विच इज अ 4 डायमेंशनल स्पेस, विच इज अ लार्जर स्पेस, इस बड़ी स्पेस के अंदर देयर एग्जिस्ट अ लीनियर बाउंड्री जो कि इस डेटा को सेपरेट आउट कर लेगी। तो नई स्पेस के अंदर अगेन द बाउंड्री विल बी लीनियर इन द न्यू स्पेस, बट दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू नॉन लीनियर बाउंड्री इन द ओरिजिनल स्पेस। सो मुमकिन है ओरिजिनल स्पेस के अंदर ये बाउंड्री बन रही हो, जबकि आपने फीचर्स को ट्रांसफॉर्म किया, नई स्पेस में गए, वहां पे एक लीनियर बाउंड्री फिट की, and that linear boundary correspond to a non-linear boundary in the original space. And this whole space transformation kind of thing can be achieved very efficiently using kernels. So kernels होते हैं जो spaces को दूसरी spaces पे map करते हैं through a particular kind of operation known as dot product, and that makes it much more efficient. यानी अगर मैं आपको थोड़ा सा ये इस तरह से बताऊं डिटेल में जाए बगैर कि एक्चुअली डेटा पॉइंट टू पॉइंट नई स्पेस में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। नई स्पेस के अंदर डेटा के डॉट प्रोडक्ट्स जो हैं, पेयर वाइज डॉट प्रोडक्ट्स, वो रिटर्न होते हैं। यानी आपने कभी भी एक्सप्लिसिटली नई स्पेस के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करना।
डेटा का पेयर जो है वो जाएगा नई स्पेस के अंदर, उनका डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट होके आ जाएगा और कभी भी एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। एंड दिस इज नोन एज कर्नल ट्रिक। और ये ट्रिक इतना पावरफुल है कि आप अपने ओरिजिनल स्पेस से इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेसेस में भी जाके काम कर सकते हैं, बिकॉज कभी भी आपने एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशंस नहीं करनी। एंड देयर आर फंक्शंस दैट एक्चुअली कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द न्यू स्पेस। सो एक गॉसियन कर्नल होता है, गॉसियन कर्नल ओरिजिनल स्पेस को इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस पे मैप करता है, विच मीन्स कि अगर आप सिर्फ इमेजिन करें तो आपका जो ओरिजिनल वेक्टर है जिसमें 2 या 3 या 4 फीचर्स हैं, इट एक्चुअली मैप टू इन्फिनिट कोऑर्डिनेट्स, and then everything is happening in that infinite dimensional space. But how come a computer can manage infinite dimensional space? Actually, the points are not represented explicitly, never. There is a function that actually gives. So for example, you apply a function on a pair of points, and that corresponds to a dot product in the new space. And if your algorithm relies only on the dot products, you are good to go. It's like you are working in an infinite dimensional space. And that is known as kernel trick. Very, very famous, very, very powerful in machine learning techniques. Okay, so logistic regression. Then another very powerful model that is mostly used, let me just name them, is support vector machines. Support vector machine is again a linear model, and the difference between logistic regression and support vector machine is the following. Logistic regression में आपने एक बाउंड्री फिट की थी जो इस तरह की थी कि सारे पॉइंट्स उससे जितने दूर हो सकते हैं हों। एसवीएम भी एक बाउंड्री फिट करेगा, लेकिन ये वो वाली बाउंड्री होगी कि जो करीब 3 पॉइंट्स हैं वो जितने दूर हो सकते हैं हो जाएं। द पॉइंट्स दैट आर वेरी क्लोजर टू द बाउंड्री, दे शुड बी एज फार अवे एज पॉसिबल। रिगार्ड, जाहिर है जो पॉइंट्स बाउंड्री के करीब नहीं है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। इन अ सेंस जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन है और जो एसवीएम का कॉस्ट फंक्शन है, यानी जिस वे में ये दोनों चलते हैं, इन अ सेंस दे लुक लाइक द सेम। मिसाल के तौर पे अगर आप कहें कि मैंने एक ऐसी लाइन लेके आनी है 10 2D के केस में जिससे सारे के सारे पॉइंट्स दूर हों, तो जाहिर है जो उसके करीब पॉइंट्स होंगे वो भी दूर होंगे, विच मीन्स कि इट सिमुलेट्स एसवीएम। और अगर मैं एसवीएम की बात करूं और कहूं कि मैंने एक ऐसी लाइन लेके आनी कि जो उसके करीब 3 पॉइंट्स हैं वो दूर हों, तो बाकी पॉइंट्स भी दूर होंगे। सो इन अ वे एसवीएम इज सिमुलेटिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो देयर इज अ डिबेट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एसवीएम एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन दैट, यानी लोगों ने एसवीएम को बहुत ज्यादा पॉपुलर तो कर दिया है, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो कॉस्ट फंक्शन है वो भी ये इंश्योर करता है, मैक्सिमम सेपरेशन को इंश्योर करता है, मैक्सिमम डिस्टेंस को इंश्योर करता है। जी सॉरी, लाइन आपने ढूंढनी है। आई मीन यू हैव टू प्लेस द लाइन। लाइन तो लिनियर ही है ना। पॉइंट्स तो आप छेड़ ही नहीं सकते, पॉइंट्स तो जिधर पड़े हैं पड़े हैं। यू हैव चांसेस टू प्लेस अ लाइन। तो मैं लाइन ये प्लेस करता हूँ, ये अच्छी लाइन है या नहीं है, आई हैव टू कैलकुलेट दैट। मैं लाइन ये प्लेस कर सकता हूँ, मैं लाइन ये प्लेस कर सकता हूँ, ये प्लेस कर सकता हूँ, मैं लाइन ये प्लेस कर सकता हूँ। अब इस लाइन का और इस लाइन का मैं दोनों का देखूंगा, इस लाइन के करीब 3 पॉइंट्स कौन से हैं, वो फर्क पॉइंट्स होंगे। इस लाइन के करीब 3 पॉइंट्स इसके अपने फर्क पॉइंट्स होंगे। सो द लाइन जिसके करीब 3 पॉइंट्स जितने दूर हो सकते हैं हो जाए, वो वाली लाइन ढूंढ के लानी है। दैट इज द गोल ऑफ एसवीएम। मैं सारी लाइंस ट्राई करूंगा जितनी लाइंस मेरे पास दुनिया में मौजूद हैं, फिर वो वाली लाइन ढूंढ के लाऊंगा कि जिसके जो अपने करीब 3 पॉइंट्स हैं दे आर एज फार अवे एज पॉसिबल एज कंपेयर टू ऑल अदर लाइंस के उनके अपने करीब 3 पॉइंट्स कम दूर थे। नहीं, करीब 3 पॉइंट्स जो है ना वो दोनों होंगे, वो दोनों होंगे। हाँ, दोनों तरफ से हम दैट कैन बी प्रूवन कि दोनों तरफ से डिस्टेंस सेम होगा। अगर सेम नहीं है तो उसको बाउंड्री को आप शिफ्ट कर सकते हैं एक तरफ पे ना, बढ़ाने के लिए। सही है। और ये जो करीब 3 पॉइंट्स होते हैं इसके, इनको कहते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। दीज आर कॉल्ड सपोर्ट वेक्टर्स। मेक सेंस? क्लियर? अच्छा, तो सवाल ये है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में और एसवीएम में फर्क क्या है? क्योंकि दोनों का दोनों का जो गोल है वो सेम है कि आपने बाउंड्री से पॉइंट्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्लेस करना है, या बाउंड्री ऐसी प्लेस करनी है कि पॉइंट्स उससे जितने दूर हो सकते हों। तो इन दोनों का डिफरेंस है जी स्पार्सिटी। स्पार्सिटी
SVM का जो सोल्यूशन है ये स्पार्स होता है। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मशीन लर्निंग के किसी कोर्स में आपसे मुलाकात हुई थी इंशाल्लाह। वैसे मेरे लेक्चर्स जो हैं वो पढ़े में इसी सेटअप पे रिकॉर्डेड, जिसमें SVM पे पूरे 4 लेक्चर्स हैं और उसकी स्पार्सिटी के ऊपर हैं, आप वो देख सकते हैं यूट्यूब पे ना, अपलोडेड हैं। पिछली क्लास को मैंने BS को ये पढ़ाया था। लेकिन स्पार्सिटी है क्या कि जो आपके पैरामीटर वेक्टर्स हैं, जो पैरामीटर वेक्टर आपका आएगा उसमें बहुत सारी एंट्रीज जो हैं वो जीरो होंगी और बड़ी थोड़ी एंट्रीज होंगी जो नॉन जीरो होंगी, विच मीन्स कि आप बहुत बड़े पैरामीट्रिक मॉडल को सोच तो रहे हैं लेकिन जो एक्चुअल सोल्यूशन आएगा उसमें बड़े थोड़े पैरामीटर्स होंगे जो नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे। सो दिस गिव्स अ स्पार्स सोल्यूशन, विच मीन्स कि आप लार्जर स्पेसेस के अंदर डेटा को ट्रांसफॉर्म कर भी दें, द चांसेस आर कि वहां पे ओवरफिटिंग नहीं होगी। सो दिस एक्चुअली अवॉइड्स ओवरफिटिंग। The chances are high to avoid overfitting in the larger spaces due to the modeling of SVM, which actually returns a sparse solution. इस बात की अगर आपको समझ नहीं भी आई, that is fine. Just take the note के the difference between logistic regression and SVM is indeed sparsity, and sparsity actually has a higher probability that SVM will not go towards overfitting as compared to logistic regression. Okay? Then कोई सवाल तो नहीं है ऑनलाइन ऑडियंस? यही सवाल था कि जो ज़्यादा वेट्स के ज़ीरो होने से जो ओवरफिटिंग का रिलेशनशिप क्या होगा? एक्चुअली आपकी मॉडल की जो कम्प्लेक्सिटी है ना, वन मेजर ऑफ डिफाइनिंग द कम्प्लेक्सिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मॉडल इज द टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव पैरामीटर्स। अगर आप इसको सोचें तो आपकी पैरामीट्रिक स्पेस कितनी बड़ी है उतना मॉडल आपका फ्री है, यानी उतने मॉडल में फ्लेक्सिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल एक मॉडल है जिसमें 50 इफेक्टिव पैरामीटर्स हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, 50 सेटिंग्स हैं, एज कम्पेयर टू एक मॉडल जिसमें 10 इफेक्टिव पैरामीटर्स हैं। अब अगर SVM 50 पैरामीटर्स, ओरिजिनली आपने जो मॉडल इम्पोज किया था वो 50 पैरामीटर्स का था, बट इट टर्न्स आउट कि ओनली 5 ऑफ द पैरामीटर्स आर जस्ट प्लेइंग द रोल एंड द रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स आर ऑल जीरो। दैट मीन्स कि जो आपकी पैरामीट्रिक स्पेस है उसकी सब स्पेस के अंदर एक्चुअल मॉडल फिट हुआ हुआ है, which ensures better generalization, क्योंकि मॉडल सिंपल है। जितना मॉडल कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना वो ओवरफिटिंग की तरफ ज़्यादा उसका इम्कान होगा। ठीक है, Does that make sense? Yes. Okay, great. SVM, and then we have logistic regression, SVM, and then we have some ensemble methods. Ensemble methods like random forests. Random forests, decision trees, gradient boosting, and there are so many ensemble methods. Ensemble methods are, rather than using one model, you use multiple models, and then from all the models, you somehow merge the prediction and make the final prediction. एक सवाल ये हो सकता है कि मैं ये वाला मॉडल यूज करूं, वो वाला मॉडल यूज करूं, ये एक हाइपर पैरामीटर है ना कि मैंने कौन सा मॉडल यूज करना है। And one way is to use, many models for the same data. And each model will learn on its own some of the properties, how to predict something. और जब आपके पास हर मॉडल से predictions आती हैं, then there should be a way to combine the predictions from different models to make the final prediction. And those models are known as ensemble methods, जिसमें random forest आता है, decision tree आता है, gradient boosting आता है, ADA boost आता है, इसमें काफ़ी सारे मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स आते हैं। सो ये क्लासिकल किस्म के जो क्लासिफिकेशन मॉडल हैं, अगेन मैं आपको बताता चलूँ, थ्योरेटिकली एक मॉडल दूसरे मॉडल से कभी भी बेहतर नहीं होगा अगर आपने डेटा को नहीं देखा। यानी आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि कल को जो भी डेटा आएगा, ये जो सारे मॉडल्स हैं इनमें से लेट्स से SVM विल आउट परफॉर्म ऑन द डेटा जो कि अभी आपने नहीं देखा। ये क्लेम आप कोई भी नहीं कर सकता। मेक सेंस? once you know the data, once you see the data, once you analyze the data, you have some look and feel of the data. That's the information from the data that will guide you which model you have to pick. सही है जी? फिर SVM, particularly classical machine learning में SVM is very overrated. SVM के overrate होने का एक मकसद ये है कि on a lot of data sets, it actually performed very well. और जो न्यूरल नेटवर्क्स की बर्थ से पहले नॉर्मली तकरीबन हर किस्म के डेटा सेट पे बाय चेंजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कर्नल्स SVM वाज परफॉर्मिंग वेरी वेल। सो अगर प्रैक्टिकली मैं आपसे कहूँ कि आपने अगर क्लासिकल मशीन लर्निंग को यूज़ करना है और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है आपकी, रिग्रेशन नहीं है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है,
तो डिफ़ॉल्ट यानी आप मुझसे अगर पूछेंगे यार हम कौन सा नॉर्मली क्लासिफायर अप्लाई किया करें या शुरू किससे करें, तो आई वुड से प्रैक्टिकली you should use SVM, but that's a practical advice, not a theoretical advice. Make sense? यानी मैं ये नहीं कह सकता कि use SVM, it will outperform, but we have seen a lot many times that SVM actually outperforms, so the chances are कि SVM will outperform. Similarly, अगर आपने regression use करनी है, so regression के लिए the practical advice is use random forests. The ensemble learning using random forests for regression actually performed very, very well. Make sense? Even recently gradient boosting जो है ये भी काफी अच्छी regression के लिए. So there are some rules of thumb किस situation में क्या use करना है, but that is not end of the story. You can start from there, but then you're free to go anywhere because the data is the guide, not me and not anyone else. Make sense? So far so good. Now with this, let me move towards a new class of models which are very, very famous. Let me name them deep learning models. Or normally neural networks. Sorry? I'm exactly explaining right now why. Why you should choose, why deep learning becomes so much famous these days. Neural networks पे actually जो काम हो रहा है वो तो कई दहाइयों से हो रहा है, बहुत अरसा पहले से हो रहा है. बोल्ट्जमैन मशीन जब से बनी हुई है यानी 1960s से भी, यानी न्यूरल नेटवर्क्स पे जो काम हो रहा है बहुत पहले से हो रहा है. बट इट जस्ट सो हैपेंड कि रिसेंटली, यानी आप कह लें 10 से 15 साल हुए हैं, डीप लर्निंग होनी शुरू होगी हर तरफ न्यूरल नेटवर्क्स. व्हाई इज दैट द केस? दैट इज आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, एंड दैट्स द प्राइमरी रीजन जिसकी वजह से लोग न्यूरल नेटवर्क्स यूज करते हैं. और अब इसी पे आगे काम होना शुरू हो गया. ठीक है जी, तो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. बजाय पहले ये बताने के कि न्यूरल नेटवर्क होता क्या, पहले मैं ये बताने जा रहा हूँ कि न्यूरल नेटवर्क फेमस क्यों है, फिर मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है एंड सो ऑन, एंड वी विल ट्राई टू कोड ऑल दीज थिंग्स इंशाल्लाह टुडे. अगेन मैं आपको बता रहा हूँ द लेक्चर इज 3 hours टुडे. जिन लोगों ने जाना है, बीच में मसले मसाइल हैं जिनके, वो लेक्चर छोड़ के जा सकते हैं. रिकॉर्डिंग होती रहेगी, वो आपको मिल जाएगी. लेकिन आई डू नॉट वांट टू डिले दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि आगे भी फिर छुट्टियां आ रही हैं. आई डू नॉट वांट टू डिले, आई वांट यू टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट वेरी क्विकली. सही है? So that's the goal for today. So the reason why neural networks are famous, one, their data utilization capacity. That's one reason. The other reason is representational power. So what is data utilization capacity? This is assumed कि जितना ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा हो किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल के लिए, जितना ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा आप देते जाएंगे उतनी उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी. परफॉर्मेंस इन द टर्म्स ऑफ जनरलाइजेशन. ओके, बट it happens that if you come up with, so let's say this is amount of data, amount of training data, and this is performance of the model. This is performance, this amount of training data. It turns out that the classical algorithms, if you give them larger amount of training data, the relationship looks like so. You increase the amount of training data, the performance, you can see the performance increase. You can increase the training data further, you can see the performance increase and so on. This is kind of a relationship. So this is an increasing relationship. Increase the training data, you will see the increase in performance. What happens in neural networks is that although they have this kind of curve, but then it actually, after a certain limit, it actually outperforms the traditional models. यानी जो पिछले मॉडल्स हैं, क्लासिकल मॉडल्स हैं, उनको अगर आप मजीद ट्रेनिंग डेटा देते जाएंगे आफ्टर अ सर्टेन कैपेसिटी, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज तो होगी, लेकिन नॉट दैट मच जितनी परफॉर्मेंस न्यूरल नेटवर्क्स की
इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी. एंड दैट्स वन रीजन टू यूज डीप लर्निंग मॉडल्स दीज डेज, क्योंकि दिस इज द एरा ऑफ बिग डेटा. डेटा इतना ज्यादा जनरेट हो रहा है, डेटा इतना ज्यादा अवेलेबल हो रहा है, आई मीन डेटा टेराबाइट्स में अब अवेलेबल है. नाउ अगर आप टेराबाइट्स ऑफ डेटा के ऊपर क्लासिकल मॉडल्स अप्लाई करेंगे, मोर डेटा बेटर परफॉर्मेंस, दैट इज ट्रू, बट मोर डेटा मच बेटर परफॉर्मेंस इज द केस विद न्यूरल नेटवर्क्स. सो न्यूरल नेटवर्क्स की ये प्रॉपर्टी पहले भी थी, लेकिन पहले डेटा अवेलेबिलिटी नहीं थी. नाउ big data, I mean data sensors, they are capturing data, recording data and everything. Now if you have much more data, you should have a model that actually utilize that data very, very well. And neural networks have this capacity as compared to the traditional models. That's one reason for the famousness of neural networks, particularly these days. Okay. The other reason for using the neural networks in place of the traditional models is the representational power. Whatever function you come up with, it can be approximated using a neural network. So, and that theorem is known as universal approximation theorem. Universal approximation theorem says that you come up with any pattern, you can come up with a neural network that actually can approximate that pattern, which means whatever model other than neural network is capturing whatever pattern, neural network can do that as well. All you have to come up with is a better architecture of the neural network, better settings of the neural network. So why don't we go with a model that is universal? Rather than picking this model for this situation, that model for that situation, and so on, why don't we pick a model that is best for every situation? Make sense? But this universal approximation theorem is not the reason for using neural networks these days. The reason that was there. Neural networks are very powerful. Great. They can represent anything. Great. Okay, we do not have enough data to actually deploy neural networks. That's one bottleneck. Now data is available. The other bottleneck, the training process of the neural networks, I should write that third one, actually 1.5. That is the resources, I mean computational resources, computational power. अब अगर आपके पास डेटा ज्यादा है, आपके पास मॉडल बहुत बेहतर है, तो अब आपके पास कंप्यूटेशनल पावर भी इतनी है, आप लोग पैरेलल काम कर रहे हैं, क्लस्टर्स बन रहे हैं, इतने जबरदस्त किस्म का हार्डवेयर डिजाइन हो चुका हुआ है कि जिसके ऊपर ये न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग बियरेबल हो गई है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. So why deep learning becomes famous these days? Because of availability of large amount of data, because of availability of computational power. Okay, the third thing, should that drive us to use always neural networks? Well, universal approximation theorem says it is not a bad choice. It is actually universal. Make sense? That's why people are using. There are situations जिनमें ना, for example, small sample size problem एक होती है. Small sample size problem ये होती है कि आपके पास जो training data है उसके number of instances कम हैं और ट्रेनिंग डेटा की जो फीचर स्पेस है वो बड़ी है. यानी आपके पास एक डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ज्यादा हैं, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कम है. इस प्रॉब्लम को कहते हैं स्मॉल सैंपल साइज प्रॉब्लम. स्मॉल सैंपल साइज प्रॉब्लम न्यूरल नेटवर्क से उतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं होती जितने अच्छे तरीके से स्मॉल सैंपल साइज प्रॉब्लम के लिए लोगों ने मॉडल बनाए हुए हैं वो फिट होती है. सो देयर आर सिचुएशंस इन विच क्लासिकल एल्गोरिथम्स आर यूज्ड, पर्टिकुलरली जहां पे आपके पास डेटा सैम्पलिंग जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, डेटा कम हो, इंक्रीमेंटल लर्निंग करनी हो, थोड़ा थोड़ा डेटा आ रहा है, डेटा की फीचर्स बहुत ज़्यादा, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है. इन दोज केसेस आई मीन यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई न्यूरल नेटवर्क्स. और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आप न्यूरल नेटवर्क्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे इवेंचुअली. ठीक है. सो क्लासिकल मॉडल्स अभी तो दे आर अराउंड, बट मुमकिन है कुछ अरसे बाद जब हर फील्ड में डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो शायद फिर लोग फिर तब ये यूज़ करना शुरू कर दें. लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसी डोमेन्स हैं जहाँ पे डेटा सैम्पलिंग इज एक्सपेंसिव, डेटा कम है, अवेलेबिलिटी कम है एंड सो ऑन. स्मॉल सैंपल साइज, SSS प्रॉब्लम इसको कहते हैं, स्मॉल सैंपल साइज प्रॉब्लम.
और इसमें लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस किस्म की चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं। एक नल LDA होता है, नल लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, वो बहुत बेहतर चलता है इसमें, स्मॉल सैंपल साइज प्रॉब्लम में। दैट्स अ वेरी वेरी ट्रेडिशनल मॉडल। ओके, so far so good. Should we move on? Yes? Okay, great. Now let's see what is a deep learning model. It's defined like so. So पहले मैं पिक्चर बनाता हूँ और दोबारा फिर मैं FW की फॉर्म में लेके आऊंगा इसको। ठीक है, पहले मैं पिक्चर बनाता हूँ। ये आपके पास एक डेटा पॉइंट है, लेट्स से x1, x2, x3 dot xd. That is one feature vector, and it may represent the ith point, let's say, and these are the features. Let's say this is a computational unit. We call this as a computational unit. In neural network terminology, it can be called a neuron, it can be called a perceptron. There are different names. So we have this goes into it, this goes into it, this goes into it, and this goes into it. This has its parameter W1, this has its parameter W2, this has its parameter W3, and this has its parameter WT. So what happens inside here is actually we take the sum of so this is just the sum of all the weighted sum. So हर feature जो है उसका एक weight है, weight is a real number. हर feature का एक weight है, तो feature को उसके weight के साथ multiply करें और उसके बाद इन सारे products को add कर दें. That's a weighted sum. Okay. So ये एक real number आ जाएगा ना, that belongs to a real number. ये एक real number आएगा eventually. इस real number को किसी एक function से गुजारें और वो function non-linear होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? I'll explain that. नॉन लीनियर फंक्शन से इस रियल नंबर को गुजारें। वो नॉन लीनियर फंक्शन ट्रेडिशनली लोग यूज़ करते हैं सिग्मॉइड, लेकिन कोई भी नॉन लीनियर फंक्शन हो सकता है। 1 + 1/1 + e⁻⁻⁻z। अगर ये वाली वैल्यू जो है वो z है, दैट्स अ रियल वैल्यू, देन यू copy this value, paste here, and that will generate another real number. Okay, and that real number is actually the result. This is the processing of one neuron. I have built one perceptron in front of you. And by the way, if this is the only neural network you are working with only one neuron, then this neural network is known as logistic regression. This is exactly logistic regression. सही है? अगर मैं न्यूरॉन्स एक से बढ़ा दूंगा और आपस में उनको कनेक्ट करना शुरू कर दूंगा, that will build a neural network. Make sense? So far, right now, this is completely a neural network. This is completely a logistic regression unit. Okay. Let me move on further. It is possible that I have my xi, which is a vector. Okay. And then I have this unit, and this unit, 3 units. And this xi will be multiplied by its weights w. Remember, xi has d components. So w will be having d components. Let me call this as w1. Okay. Then this neuron has its own set of weights, w2, d weights, w2. And this neuron has its own set of weights, w3. So this number appears after applying, let's say, a sigmoid. So हर एक न्यूरॉन में क्या हो रहा है, जो वेट्स हैं और जो इनपुट्स हैं, they are multiplied together, added together, generates a real number. The real number is passed through a non-linear function, generates another real number. Okay, and this is true for every neuron. Okay, now this is out, this is out. And now I may have, this is the second computational layer. In the second layer, I can have 4 neurons or 6 neurons and so on. So what happens is this input
Let me make this input as a vector here. This is now a vector with 3 numbers concatenated together. And this vector goes to just like this one, it goes to this one. And let me call this as W4, W5, W6, and W7. Remember, these W's has three components each. The W's of the second layer. Okay? Because each input to a neuron has 3 numbers. So each W of the neuron has 3 numbers. Okay. Then we can have, now this generates actually an input of 4 elements to the next layer. I can combine that or concatenate the input. And maybe the next level, I have only 2 neurons. So I give this W8 with 2 components, W9 with 2 components, and maybe all these are sigmoids or some other nonlinearities. And then maybe finally, that's the output that I needed, which can be combined together as yi hat. Make sense? Maybe I have just 2 classes, and this unit actually is predicting the probability of class 1, and this unit is predicting the probability of class 2. And this is the vector of probabilities of class 1 and class 2. And here I can apply a loss function by given the actual y. So the loss will be yi hat and y. And this loss function, I want to minimize this loss function. And the model parameters are all these numbers. These are all the model parameters. Yes, y hat. Y hat. These are model parameters. Now, one can easily prove that actually मैंने अगर Sorry? Yes. So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, simplicity के लिए. Xi belongs to RD. So W1, W2, W3, they also belong to RD. Make sense? इसको मैं कह रहा हूँ, इसको आप कह लें, let's say Z1, ये जो बाइर वेक्टर आ रहा है Z1. Z1 belongs to R3. These are 3 numbers. And so W4, W5, W6, W7, they all belong to R3. 3, 3, 3, 3, vector of 3, 3. Let me call this value as Z2. Z2 belongs to R2 because these are only 2 numbers. And so W8 and W9 both individually belong to R2. Yes? Make sense? And अब जरा गौर से देखिएगा. And if you think a W data structure, W that actually has all these parameter vectors stored in some way, and this is my data structure to represent all the parameters W, then you can see, अब जरा गौर से देखिएगा, you can see this whole thing, this whole thing as f of Wxi that generates yi. That's it. It's a function, it's a model of a specific form. But again, it's a model. All the machine learning rules that you have seen earlier are applied here. It's a function that maps input to the target. It has a set of parameters. Yes, no? Make sense? Any questions online? Is that okay?
इसके काशिफ तो आप ये दोबारा बता देंगे जो डायमेंशंस है वेट्स की, जी, इसको ज़रा दोबारा बता दीजिएगा। ये xi जो वेक्टर है, अम, ये जो वेक्टर है xi, इसके d नंबर्स हैं, d फॉर डॉग, ठीक है, d नंबर्स हैं इसके। सो इसने डॉट प्रोडक्ट होना है w1 से टू मेक अ रियल नंबर जिसके ऊपर नॉन लिनियरिटी अप्लाई होनी है। सो इसका मतलब w1 के अंदर भी d नंबर्स होने चाहिए। इसी ने मल्टीप्लाई होना है, डॉट प्रोडक्ट होना है w2 के साथ टू जनरेट अ रियल नंबर हियर। इसका मतलब w2 के भी d एलिमेंट्स होने चाहिए। इसी ने डॉट प्रोडक्ट होना है इंडिपेंडेंटली w3 के साथ टू जनरेट अ रियल नंबर हियर। इसका मतलब w3 के भी d एलिमेंट्स होने चाहिए। So w1, w2, w3, they all has a dimension, exactly the dimension of its input. Make sense? So far? ठीक है, सही है। Okay, then Z1 has 3 elements, one element coming from here, one element coming from here, one element coming from here, maybe stacked in a column vector form, but Z1 has 3 elements. Now, this particular node must have 3 weights to be dot producted with Z1. So W4 must have 3 elements so that it can be dot product with Z1 to generate a real number here जिसके ऊपर non-linearity apply होनी है। Non-linearity क्यों apply होनी है that I will discuss later, but that's the architecture. W5 जो है इसने dot product होना है Z1 के साथ to generate a real number, so W5 के भी 3 elements होने चाहिए, W6 के भी, W7 के भी। अब इसके बाद जो आउटपुट आएगी Z2, Z2 के अंदर actually, oh, this Z2 is wrong. 1, 2, 3, 4. Z2 जो है that actually belongs to R4. Let me correct this. Thank you. Z2 के अंदर actually 4 elements हैं. Z2 के अंदर 4 elements हैं. Actually, one element coming from here, one element coming from here, here and here. So Z2 has 4 elements. W8 consequently must have 4 elements, and W9 consequently must have 4 elements. And then the 2 element vector is out, which is yi hat. Is that okay? Yes, thank you. Sarim, thanks for correction for this third layer. Okay. Any other question? Okay. So that's the architecture. Just like traditional architecture, it's a function mapping from input to output. Not a big deal. Why this non-linearity must be there? Let me explain this. Why we need a non-linearity, like some function that must be non-linear. Why we need that inside? Why don't we just pass these real numbers out without applying a non-linear function? Yes. SP4. Next page. Z2 को तो उसने एक एलिमेंट दे रहा है ना अपना, एक रियल नंबर ये आ रहा है, एक रियल नंबर यहां से आ रहा है, एक रियल नंबर यहां से आ रहा है, वो स्टैक होकर 4 रियल नंबर्स बन रहे हैं। Make sense? Okay, great. Let me explain the need of nonlinearity so that we should understand why they are applying these nonlinear functions inside, why it is needed. देखिएगा, अगर मैं इसको नॉन-लिनियरिटी के बगैर पास करूं, let's say this is xi, this is w1, and this is w2. Okay, maybe we can have multiple neurons here, और इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं. Let's say we have this w1. So let's say W1, W2, W3, these are weight vectors for initial layer. Then W4 is a weight vector for the second layer, and second layer has 3 components, Z1, okay? You can see if there are no nonlinearities, then this can be computed as W2 transpose Xi. Yes, this can be computed as W1 transpose Xi, and this can be computed as W3 transpose Xi.
Yes? And that's the vector Z1 that is coming out without nonlinearities. Make sense? Okay. Now, this Z1 can be dot producted with W4, and we have our yi hat. Yes? Now, if I open up this thing, if you see, W4 transpose into W2 transpose xi, W1 transpose xi, W3 transpose xi. I can further break these two things down, and I can come up with W4 transpose times some representation of W1, W2, W3 in a matrix form times xi. I can break this thing down further to make this multiplication W4 to W1 earlier than this, because जो matrix multiplication है वो associative होती है, आपके पास A, B, C तीनों matrices हों, that is equal to A, B into C. Matrix multiplication is associative. So all these are matrices. Xi is a matrix, W2 is a matrix, W4 is a matrix. You can deassociate Xi from W2, and you can associate W2 with W4. And that will bring eventually one matrix, a giant matrix, multiplied by Xi, and this is generating Yi if there is no nonlinearity. That is simple linear regression. It all maps to one linear unit. Make sense? आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी layers लगाई हुई हैं, इतने units हैं, but if there is no nonlinearity, no one is stopping all the neurons to collapse together to make one neuron, which is a simple linear regression model. To stop this collapse, we have to apply nonlinearity inside. There is no other way to stop it. And this is the simplest way to stop it. And that's the reason, if you want this neuron to act individually, यार ये मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं अभी वापस आ रहा हूँ, तो मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ. Just give me 2 minutes. Okay, so the nonlinearities inside these units are required for these neurons to act independently. Not independently, I should say, because the further neurons, they depend upon the output, but they should actively contribute their contribution inside. Otherwise, all these things, they will collapse together. And that will no longer be a neural network. Make sense? This nonlinear function inside is known as activation function. अगर ये लीनियर फंक्शन होगा तो लीनियर फंक्शन अगेन मैट्रिक्स के तौर पे लिखा जा सकता है. कोई भी लीनियर फंक्शन होगा उसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के तौर पे लिखा जा सकता है. तो वो फिर अपने वेट मैट्रिक्स के साथ कंबाइन होकर xi को फिर साइड पे कर देगा ना. देखें एक लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है. एक लीनियर फंक्शन, अ फंक्शन इज कॉल्ड लीनियर इफ इट कैन बी रिटन एज सम मैट्रिक्स a times the input x is equal to f of x. The function f is called linear if the output can be obtained by matrix multiplication. That is definition of linearity. अगर आप linear function ही बीच में अप्लाई कर दें तो linear function के अपने कोई पैरामीटर्स होंगे a या कोई कांस्टेंट्स होंगे a, वो w के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक नया w बन जाएगा, लेट्स से w डैश. वो ये w की बजाय कोई और w होगा, but the whole thing will be parameter matrix times input to the output. The whole thing will be a linear collapse. Make sense? That's a good question, by the way. So the nonlinear function inside is known as activation function. There are so many different kinds of activation functions. There are merits and demerits of different activation functions.
एक्टिवेशन फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? नंबर 1, इट शुड बी नॉन लीनियर ड्यू टू द रीजन जस्ट आई एक्सप्लेन्ड. सेकेंड प्रॉपर्टी, इट शुड बी डिफरेंशिएबल. पता नहीं डिफरेंशिएबल के स्पेलिंग क्या होते हैं. It should be differentiable. Why it should be differentiable? Because to minimize the loss function, we have to apply the gradient descent algorithm on that. We have to compute the gradients of loss with respect to every parameter. And chain rule actually will pass through these activation functions too. अगर आपका activation function differentiable नहीं है तो आप loss function का derivative नहीं ले सकेंगे parameters के through जिस पे वो वाले parameters जिन पे वो activation function apply होगा. So it should be differentiable. And third property, which is optional but important, it should be computationally efficient. It should be computationally efficient, which means कि आपने non-linear function choose तो करना ही है, तो आप एक ऐसा function choose कर लें जिसको apply करना computationally faster हो और उसका derivative apply करना computationally faster हो. So these are normally the three properties that allow you to choose an activation function. अब activation function काफ़ी सारे हैं, sigmoid है, ReLU है, tan H है, काफ़ी सारे हैं. कुछ activation function कुछ दूसरे activation functions पे priority लेके जाते हैं depending upon the different tasks they are applied in. मिसाल के तौर पे जो sigmoid function है, activation function, that is normally applied at the last layer of a classification of a neural network that is trained for classification. And that last layer, if contain all sigmoids, that last layer is known as softmax layer. और ये probabilities return करता है different class के साथ belong करने की एक particular object की. इसकी ये खासियत है. पीछे भी आप apply कर सकते हैं different जगहों पे, लेकिन over the time it has been studied कि अगर आप sigmoid function intermediate layers पे apply करेंगे, there may be a saturation problem that cause the learning to become slow or sometimes to learning to halt. इसलिए जो अर्लियर लेयर्स हैं उनमें डिफरेंट फंक्शंस, जो सबसे ज़्यादा डिफॉल्ट काइंड ऑफ फंक्शन यूज होता है दैट इज ReLU, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट. वेरी सिंपल फंक्शन, max of 0 and x. So that's the function. So जो भी वैल्यू है, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो दैट्स द रिजल्ट, अगर वो वैल्यू नेगेटिव है देन 0 इज द रिजल्ट. एंड दैट्स अ नॉन लीनियर फंक्शन, इट हैज अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज. इसमें एक छोटा सा थ्योरेटिकल हिंट है कि ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन पीपल यूज सब ग्रेडियंट मेथड्स टू एक्चुअली make it differentiable. Because 0 पे we will choose this part or that part. Anyways, there are hacks to do that, but that works. That is kind of default in classification and regression problems. Okay. Again, choice of an activation function is a hyperparameter. नेगेटिव आ जाए तो फिर वो फंक्शन लीनियर हो जाएगा. अगर आप फिर तो आप ऐसे कर लेना, आपने नॉन लीनियरिटी भी तो इम्पोज करनी. नहीं तो वैल्यू नेगेटिव होगी. वेट आप नेगेटिव कर लेना. वैल्यू को अगर आप पॉजिटिव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. किसी नॉन लीनियरिटी लगा के आपने वैल्यू को ट्रांसफॉर्म तो करना है. अगर आप नेगेटिविटी होल्ड करना चाहते हैं तो वेट्स तो नेगेटिव हो सकते हैं किसी भी टाइम पे. सही है, ठीक है जी. अब जो नंबर ऑफ हाइपर पैरामीटर्स इंक्रीज हो चुके हैं वो मैं आपको बताता चलूं. न्यूरल नेटवर्क्स की लेयर्स कितनी होंगी? लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, 5, 10, 50 लेयर्स हो सकती हैं. दैट्स अ हाइपर पैरामीटर. वी डू नॉट नो. The answer will come after validation. We will start from a network and we may change the architecture. And a lot of research in neural networks goes to find out a good architecture for a particular problem. And over the time, लोगों ने बड़े अच्छे architectures propose किए हैं. ये architecture choose करें, ये architecture choose करें, and so on. But total number of layers कितनी होंगी? That's a hyperparameter. एक layer के अंदर neurons कितने होंगे? That's a hyperparameter. एक layer के अंदर इतने हो सकते हैं, दूसरी के अंदर इतने हो सकते हैं, and so on. हर layer के अंदर activation function कौन सा होगा? That's a hyperparameter. क्या हर न्यूरॉन को अलग एक्टिवेशन फंक्शन देना है, या एक लेयर के हर न्यूरॉन को सेम एक्टिवेशन फंक्शन देना है, या पूरे नेटवर्क को सेम एक्टिवेशन फंक्शन देना है? दीज चॉइसेस आर अगेन हाइपर पैरामीटर्स. सो मेनी ऑफ देम. ओके, ग्रेट. सो
That's it. The story then is you have FWXI. If FWXI, that predicts YI hat. That's the forward pass. This equation is known as forward pass. यानी आपके पास XI है, आप उसको layer by layer गुजारते जाएं and finally predict the value. That is the forward pass. And then you define a loss function. On the true value, this is the predicted value, that's a true value, and then apply gradient descent on that. And these are the derivative W's, and then update these W's based on the derivatives, the gradient descent procedure. Then apply this XI, then apply this forward pass again, then again, and finally it will converge to local minima, not a global minima. Okay? ये loss L, loss function. Make sense? Any questions? एक छोटा सा कोड देख लें to understand this concept, just a toy example. यार ये environment में Jupyter भी install नहीं था, so just installing it. Just hopefully this will be last installation, but who knows? Okay. Okay, great. So ओके, होपफुली सबको ये कोड नजर आ रहा होगा. यस, ऑनलाइन लोग भी बताइएगा. फॉन्ट ठीक है? आ रहा है नजर. ठीक है. So I'm going through this code. This code will explain bits and bytes with very simple examples. Okay, and also the working in PyTorch. अभी इस कोड में स्टार्ट में हम एक न्यूरल नेटवर्क अपना लिखेंगे, यानी without using the very heavy frameworks of PyTorch, and then we will see कि अगर हमने PyTorch में लिखना है तो how quick is that. Clear है? So hopefully ये मॉड्यूल सारे इंस्टॉल होंगे. NumPy नहीं है यार, क्या मुसीबत है.
जी कर्नल थोड़ा सा दोबारा उसको कर्नल सेट करना पड़ता है, कर्नल पहले से और तरह से सेट हुआ होता है। Everything is fine. Okay, great. Okay, this is the dot product function. It's very simple. X is input, W is the parameter vector. Here I'm assuming that X is numpy array and W is torch array. PyTorch के अंदर जो arrays हैं बिल्कुल वो numpy जैसी हैं, numpy में interconvertible भी हैं सारी। So मैं क्या करता हूँ कि मैं torch का function matrix multiplication use करना चाहता हूँ। So what I do is मैं X को भी पहले torch में convert करता हूँ, torch के data set। आपको ये खुद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो मैंने फंक्शन लिखे हुए हैं खुद अपने यानी उनको एक्सप्लेन करने के लिए ना। आप जब टॉर्च में काम करेंगे तो आप टॉर्च का फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ हैंडल कर रहा होगा, डेटा टाइप्स एंड कास्टिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। अभी मैं numpy और टॉर्च के फंक्शंस मिक्स करके यूज कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई हैव टू कीप दीज टाइप कास्टिंग ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, सो दैट्स सिंपल डॉट प्रोडक्ट फंक्शन डब्ल्यू सम, लाइक वन न्यूरॉन विदाउट एक्टिवेशन। एक न्यूरॉन क्या करेगा विदाउट एक्टिवेशन? ये करेगा, उसको एक्स जाएगा, उसको डब्ल्यू जाएगा, और मेक सेंस? ओके, एक्टिवेशन फंक्शन फिलहाल मैं यूज कर रहा हूं सिग्मोइड, कोई भी यूज कर सकते हैं, दैट्स एन एक्टिवेशन फंक्शन। ये क्या करेगा? इसको एक रियल नंबर जाएगा और ये उस रियल नंबर के ऊपर नॉन लिनियरिटी अप्लाई करेगा, जो नॉन लिनियरिटी आपने कोड की, और ये वापस भेज देगा। मेक सेंस? X एंड W लिस्ट। W लिस्ट में, W लिस्ट की वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आपने W वेक्टर्स जो हैं हर लेयर के एक लिस्ट में सेव किए हुए हैं। लेयर 1 का W, लेयर 2 का W, लेयर 3 का W, लेयर 4 का W। X जो है वो पहले लेयर 1 के W से अप्लाई होगा, फिर जो आउटपुट आएगी वो लेयर 2 पे अप्लाई होगी, एंड फाइनली प्रेडिक्शन जनरेट होगी। मेक सेंस? यस? सो लेट्स गो थ्रू द कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक दिस, देन वी पिक एवरी W फ्रॉम द W लिस्ट। Okay, we multiply it, make a Z, we apply non-linearity on the Z. By the way, ये जो फंक्शन है इसको अगर आप अरे भी पास कर लेंगे तो ये पॉइंट वाइज नॉन लिनियरिटी उस अरे पे अप्लाई कर देगा। यानी फंक्शन तो एक रियल नंबर पे अप्लाई होता है ना, लेकिन अगर आप इसको अरे पास कर देंगे तो वही फंक्शन एलिमेंट वाइज अप्लाई हो जाएगा, एक्टिवेशन फंक्शन अरे के ऊपर। सही है? सो मैंने उसको नॉन लिनियरिटी अप्लाई की, और जब नॉन लिनियरिटी अप्लाई की, दिस इज नाउ इनपुट फॉर द नेक्स्ट W, नेक्स्ट लेयर, एंड आई कीप ऑन मूविंग, एंड फाइनली जो मेरी फाइनल आउटपुट है वो मैं रिटर्न कर देता हूं, विच शुड बी वाई आई हैट। मेक सेंस? ग्रेट। यार इसमें इशू तो नहीं है? और ये जो ऑनलाइन लोग बैठे हुए हैं, आई एम गोइंग थ्रू द कोड वेरी क्विकली, इज दैट ओके? यस सर। ओके, ठीक है, सही है, ग्रेट। ओके, अपडेट पैरामीटर्स। अगर मेरे पास ओरिजिनल W's हों और मेरे पास डेरिवेटिव्स भी हों और लर्निंग रेट भी हो, हाउ कैन आई अपडेट माय W's? यानी मैंने अगर लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया हुआ हो हर W के एतबार से, तो वो मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स हों हर W के एतबार से, और ओरिजिनल W भी हो और लर्निंग रेट भी हो, व्हाट इज अ ग्रेडियंट डिसेंट स्टेप? ग्रेडियंट डिसेंट स्टेप क्या होता है? द न्यू W इज इक्वल टू द ओल्ड W minus the learning rate times the derivative. And this is true for every W in the list. So that is W list. The derivatives again in the same list, and this is the learning rate. अब चूंकि मैंने gradient computation को सेव नहीं करनी, इसमें automatic gradient जो है वो एक तरीका है PyTorch के अंदर कि आपने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर लेना है तो उसमें आप ग्रेडियंट बिट ऑन कर दें तो उसका ट्रैक सेव होना शुरू हो जाएगा, और जब आपने उसका डेरिवेटिव लेना होगा तो जिस वेरिएबल पे वो डिपेंड कर रहा है उस वेरिएबल के लिहाज से ऑटोमेटिकली डेरिवेटिव सेव कर लेगा। अभी जो प्रोसेस हम करने जा रहे हैं इसमें हमने कोई डेरिवेटिव इन्फॉर्मेशन सेव नहीं करनी, हमने तो डेरिवेटिव निकाल लिए हुए हैं, इसलिए भी हम टॉर्च को कह देते हैं कि अभी कोई ग्रेडियंट कंप्यूटेशन नहीं होनी, अब वी आर गोइंग टू डू सम सिंपल स्टेप। सो वी टॉर्च डॉट नो ग्रेडियंट फॉर I इन रेंज ऑफ W लिस्ट, हम हर W के ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट स्टेप अप्लाई कर देते हैं। इज दैट ओके? एंड दैट्स अ न्यू W दैट कम्स इन। यस, माइनस वाला फॉर्मूला नहीं करवाया ग्रेडियंट डिसेंट में? ओके, लेट्स सी।
बाय द वे ये कोड गो थ्रू कर लें, फिर हम 10-15 मिनट की ब्रेक ले लेंगे बिफोर मूविंग टुवर्ड्स रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स. सही है? सो लेट मी जस्ट सो ये होता ये है कि योर W new is equal to W old minus learning rate derivative of L with respect to W old. That's the formula. This is called the gradient step. This is the loss function. Loss function का ये gradient कैसे compute होना है? That we will see. लेकिन अगर ये gradients compute हुए हों, which is the DW list. DW list में ये gradients पड़े हुए हैं. अगर ये पड़े हुए हों, how can we update our Ws? Make sense? Okay, great. So this is done, I guess. चलें जी आगे. स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में आपको दिखाने जा रहा हूँ. बड़ा सिंपल है, मुश्किल नहीं है. एक्चुअली मैंने बैच और मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट्स भी लिखे हुए हैं और इसी कोड में आपको समझ आ जाएगी कि तीनों में फ़र्क क्या है. बड़ा आसान है. सो एक्स मेरे पास कोई इनपुट है, वाई मेरे पास आउटपुट है, और एक्स और वाई जो हैं ये एक्चुअली पूरा ट्रेनिंग डेटा है. x1 में पहली इनपुट पड़ी होगी और y1 में उसका पहला टारगेट. पूरा ट्रेनिंग डेटा मेरे पास आया हुआ है. ठीक है, XY. ये मेरे पास W है जो कि मेरा आर्किटेक्चर है. बल्कि मैं आपको आर्किटेक्चर दिखा देता हूँ नीचे ना. पहले हम आर्किटेक्चर देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो कि आर्किटेक्चर क्या है. इनपुट डायमेंशन विल्फर्ड्स आर्किटेक्चर को पहले देख लेते हैं, न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर को जिसके ऊपर अप्लाई होना है. इनपुट डायमेंशन 10, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स 1000, और मैंने डमी डेटा जनरेट कर लिया खुद ही. सो मेरे पास X जो है that is basically 1000 by 10 का matrix, where each 1000 by 10, where each row is a data point. I have 1000 rows. Each row is a data point. 10 features. Make sense? And then Y is the corresponding targets, and that's a binary classification. Y are 0 1 0 1 0 1. So rand int generate हो रहा है 0 से लेकर 2 तक, and 2 is not included. So 0 1 0 1 0 1. Make sense? So that's a binary classification data. Y एक लिस्ट आएगी ऐसे, एक वन सिंगल डायमेंशनल लिस्ट आएगी. Okay, W1. This is my layer 1. W1 is basically so it will output. So there are 2 units in W. The first layer contains 2 units, 2 neurons in the first layer, and each neuron will contain these many features. Make sense? हाँ. Total जो units हैं वो 2 हैं. That is total number of units. Total number of neurons in the first layer. Neuron 1, neuron 2. Total number of circles 2 in the first layer. Each circle will contain 10 inputs. Make sense? और अगर मैं इसका requires gradient true कर दूं तो इसका मतलब है कि ये वो वेरिएबल हैं W1, ये वो पैरामीटर्स हैं जिनके लिहाज से मुझे लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए किसी भी वक्त. सो कीप ट्रैक. जब ये फॉरवर्ड पास करेगा तो इट विल ट्रैक दिस वेरिएबल. ओके ओके. अब मैं लेयर में दूसरी में जाता हूं. दूसरी लेयर में आई हैव 3 यूनिट्स. ईच यूनिट हैज 2 इनपुट्स. मेक सेंस? स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि पिछली लेयर से 2 इनपुट्स आ रही है. अगेन रिक्वायर ग्रेडियंट्स ट्रू. थर्ड में मैं जाता हूं, एंड थर्ड में आई हैव ओनली 1 यूनिट विद 3 इनपुट्स. एक यूनिट है तो मुझे वो टप्पल लिखने की जरूरत नहीं है. सही है? अच्छा. अब ये पहले क्या चीजें हैं, ये 0 1, ये मैं इनके वेट से इनिशियलाइज कर रहा हूं.
क्योंकि मैंने कोई ना कोई इनिशियल वेट्स से शुरू करना है ना, वेट्स जब मैंने अपडेट करने हैं तो मेरे पास कोई ना कोई स्टार्टिंग वेट्स होने चाहिए. सो आई एम इनिशियलाइजिंग माई वेट्स यूनिफॉर्मली एट रैंडम between 0 and 1, and these are my architecture. So that's my total neural network architecture with 3 layers. First layer contains 2 circles, second layer contains 3 circles, and third layer contains only 1 circle. So far so good? Online people, is that okay? Yes, sir. जी बिल्कुल. मैं तो इसका टाइम बहुत लगता है, ये मैंने खुद लिखा है बैठ के. इट टेक्स टू मच टाइम. इसकी एक एक लाइन, एक एक करेक्टर मैंने लिखा है खुद. टेक्स टू मच टाइम ना. उसके बाद कमेंटिंग करना और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दीज आर गुड प्रिंसिपल्स होने चाहिए, लेकिन really takes time. Okay, W list is just a list. Yes, and then I am defining a loss function, and I'm defining the loss function from torch n dot binary cross entropy loss. ये एक loss function है जो predicted value और actual value के दरमियान deviation को compute करेगा. अभी recurrent neural network पे हम break के बाद देखेंगे. मैं आपको अपना loss function खुद torch में लिखना सिखाऊंगा, अगर आपने ना भी इसको देखना हो. लेकिन there are so many functions that are available. So that's the loss function. And then we are calling the train SGD करते हैं जी. तो ये अगर आर्किटेक्चर आपको समझ आ गया तो ये मैं ट्रेनिंग कॉल करने लगा हूँ, जिसमें ट्रेनिंग डेटा है, इनिशियल पैरामीटर्स हैं, लॉस फंक्शन है, लर्निंग रेट है, और ये नंबर ऑफ एपॉक्स हैं कि आपने कितनी दफ़ा पूरे डेटा को गो थ्रू करना है. एपॉक्स होता है कि एक डेटा सेट के थ्रू एक पूरा ट्रेनिंग डेटा पर से आपने गुजरना है ना, पैरामीटर को अपडेट करते हुए, उसी पूरे ट्रेनिंग डेटा सेट पे दोबारा गुजरें, पूरे ट्रेनिंग सेट पे दोबारा गुजरें. एक दफ़ा पूरे ट्रेनिंग डेटा सेट को देख लेना इज कॉल्ड वन एपॉक. और हाँ, पूरे डेटा सेट को, पूरे ट्रेनिंग डेटा को कितनी दफ़ा देखना है फॉर पैरामीटर अपडेशंस, दैट इज कॉल्ड द टोटल नंबर ऑफ एपॉक्स. जितने एपॉक्स ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा कन्वर्जेंस जो है वो लोकल मिनिमम की तरफ जाएगी. इसीलिए अर्ली स्टॉपिंग्स होती हैं कि आप नंबर ऑफ एपॉक्स वहाँ तक रखें जहाँ तक आपका वैलिडेशन एरर भी नीचे जा रहा है. सो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट अर्ली स्टॉपिंग, जिसमें नंबर ऑफ एपॉक्स जो हैं वो डायनामिकली डिसाइड होते हैं बेस्ड ऑन वैलिडेशन एरर. जी, अब हम जा रहे हैं ट्रेनिंग प्रोसीजर के ऊपर. अगर अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो यस. ये मैं ऑनलाइन वालों से पूछ रहा हूँ, इधर तो बंदे ही दो बैठे में. बिल्कुल बिल्कुल आ रही है. ठीक है, ग्रेट. सो x, y, w list, loss function and all these and number of epochs. So for each epoch, average loss जो होता है ये पूरे ट्रेनिंग डेटा सेट का एवरेज लॉस है, यानी the loss on all data. I go for each training data point once. So I pick X input, one single data point. I pick the true value and apply the forward step. Remember the forward step? It will generate a y hat. Make sense? And then I will compute the loss by loss function by giving y hat and the true value. अब ये true value मेरी जो थी ये numpy की array थी, तो उसको मैं टॉर्च के टेंसर में कन्वर्ट कर लेता हूं ताकि ये जो फंक्शन है, ये टॉर्च का फंक्शन, ये अप्लाई हो जाए. अदरवाइज ये है यही y hat एंड ट्रू वैल्यू. y hat एक सिंगल वैल्यू है. लॉस कैलकुलेट हो गया जी. सो फॉर सो गुड. लॉस डॉट बैकवर्ड ये सारे ग्रेडियंट्स ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर लेगा. उन तमाम वेरिएबल्स के जिनके आपने सेट किए हुए हैं रिक्वायर्स ग्रेडियंट ट्रू. लॉस के ग्रेडियंट्स उन वेरिएबल्स के लिहाज से कंप्यूट हो जाएंगे. यू नीड नॉट टू राइट योर ओन एनालिटिकल ग्रेडियंट फंक्शन. दैट्स अ ब्यूटी ऑफ ऑटोग्रेड. ठीक है जी. नेक्स्ट सेमेस्टर में डॉक्टर फारूक साहब और उनके साथ मैं भी हूँगा. हम डीप लर्निंग का कोर्स ऑफर कर रहे हैं, उसमें हम ये ग्रेडियंट डिसेंट एनालिटिकल भी सिखाएंगे आपको इंशाल्लाह, कोड भी करके दिखाएंगे. सो जो लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में हमारे साथ डीप लर्निंग पढ़ रहे होंगे, they will be understanding, they will be opening up this black box inshallah. जी पढ़ लें, वैसे ही आ जाएं, हमने कौन सा रोकना है आपको. वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, we will open up these boxes, but right now this is the goal is not to understand
deep learning deeply. Right now the goal is to apply deep learning. Okay, loss compute हो गया. So जो भी loss value आई है वो मैंने average loss की array में append कर दी. Output जो भी थी उसको मैंने flush कर दिया. और अब मैंने करना ये है, ये देखें, ये W list जो भी थी उसका जो gradient data है वो मैंने उठाना है और वो मैंने DW list में append कर देना है. यानी हर वेरिएबल डॉट ग्रेड डॉट डेटा इसमें उसका ग्रेडियंट पड़ा हुआ है. जब आपने लॉस्ट डॉट बैकवर्ड कॉल किया है तो जो वो वाले वेरिएबल्स जिनके लिए आपने रिक्वायर्स ग्रेडियंट ट्रू सेट किया हुआ था, उन वेरिएबल्स की आगे मजीद प्रॉपर्टीज हैं डॉट ग्रेड डॉट डेटा, उसके अंदर उसका ग्रेडियंट वैल्यू पड़ी हुई है. सो आप पूरी लिस्ट के ग्रेडियंट्स जो हैं वो पकड़ लें और अपडेट पैरामीटर्स कॉल कर दें. अपडेट पैरामीटर्स भी आपको याद होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ग्रेडियंट स्टेप. जब आपने अपडेट कर दिए पैरामीटर्स तो उसके बाद आप जितने भी ग्रेडियंट्स जो कंप्यूट हो चुके हुए थे उनको जीरो पे मैप कर दें. दैट इज रिक्वायर्ड क्योंकि ये गार्बेज डेटा जो है ये अगली कंप्यूटेशन को खराब ना करे. सो ये गार्बेज डेटा होता है, इसलिए आपने ग्रेडियंट डेटा आपने यूज कर लिया, ग्रेडियंट डिसेंट स्टेप आपने अप्लाई कर लिया, इसको आप जीरो पे फ्लश आउट कर दें और फिर अगले डेटा पॉइंट पे चले जाएं. फिर अगले डेटा पॉइंट के साथ यही करें. जब सारे डेटा पॉइंट्स में से एक दफा गुजर जाएंगे तो एक एपॉक कंप्लीट हो जाएगी, फिर अगली एपॉक पे जाएं, फिर अगली एपॉक पे जाएं एंड सो ऑन. मेक सेंस? सॉरी ये काशिफ भी इसमें जो हम ट्रू सेट कर रहे हैं एक वेरिएबल को, जिसमें कि हमने उसके ग्रेडियंट कंप्यूट करना है या नहीं करना, हाँ जी, उसका क्या मकसद है? फॉल्स सेट करने का क्या मकसद होगा? वो ट्रैक नहीं रखेगा ना, उसकी जो भी कंप्यूटेशंस उस वेरिएबल्स के हिसाब से होंगी ना, पाईटॉर्च पैकेज को उसका ट्रैक नहीं रखना पड़ेगा कि ये कहाँ जा रहा है. अगर आप ट्रू सेट करेंगे ना तो उसके ऊपर डिपेंडेंट कई और वेरिएबल्स भी होंगे ना जिनको आपने ट्रू सेट नहीं भी किया हुआ, उनका भी ट्रैक वो रखेगा. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल का रिक्वायर्स ग्रेडियंट ट्रू सेट कर दिया हुआ है, वो जिस कंप्यूटेशन में जाके जो नए वेरिएबल्स जनरेट करी जा रहा है ऑन द फ्लाई, उन सब का वो ट्रैक रखना शुरू कर देगा, उन सब का रिक्वायर्स ग्रेडियंट ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा. सो पूरी एक चेन जो है ना, उस पूरे चेन का आप ग्रेडियंट देख सकते हैं. अगर आप ट्रू सेट नहीं करते तो पाईटॉर्च बैकएंड पे ये पूरी जो है ना मेटा डेटा वो मेंटेन नहीं करेगा. ओके, ठीक है. ठीक है जी. ये आउटपुट मैंने शो की हुई है ना, ये प्रिंट स्टेटमेंट से, तो वो उसको फ्लश कर दें. ये समझ में आ गई? ऑनलाइन समझ में आ गई? हाँ जी. एक सवाल आपको करना चाहिए, एसटीडी का क्या मतलब है? स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट. हाँ, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट. तो अगर स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ना हो, कोई और तरीका हो, तो उसको कैसे करना है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ. स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में सिर्फ ये होता है कि जो डेटा पॉइंट आप देख रहे हैं उस डेटा पॉइंट की बेस पे लॉस को फौरन अपडेट कर दें. देन सी द नेक्स्ट डेटा पॉइंट इन द सेम एपॉक. एक एपॉक में आप हैं, जिस डेटा पॉइंट पे आपने देखा उस डेटा पॉइंट ने जो सजेस्ट किया उसको अपडेट कर दें बिफोर सीइंग द नेक्स्ट डेटा पॉइंट. सही है? यानी एक एक पॉइंट की बेस पे ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई हो रहा है. स्टोकेस्टिक इसको इसलिए कहते हैं कि ये असल में ट्रू सेंस में होना इस तरह चाहिए कि ये जो आपका ट्रेनिंग डेटा है ना, वो अप्लाई करने से पहले उसको आपको रैंडमली शफल करना चाहिए. यानी जो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिदम है वो कहता ये है कि यू शुड पिक द डेटा पॉइंट्स रैंडमली रादर देन इन अ सीक्वेंशियल मैनर. सो उसको वो करते ही हैं कि पहले डेटा को परम्यूट कर लेते हैं, शफल कर लेते हैं टू मेक इट स्टोकेस्टिक. क्योंकि ये जो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का प्रूफ है कि ये कन्वर्ज करता है बैच ग्रेडियंट डिसेंट की तरफ, ये प्रूफ, ये अजम्पशन रिक्वायर्ड करता है कि द डेटा पॉइंट्स दैट यू आर पिकिंग, यानी यहाँ पे जो आप डेटा पॉइंट्स उठा रहे हैं, दे शुड बी पिक्ड रैंडमली फ्रॉम द डेटा सेट, नॉट इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस. ऑल्दो कि वो स्टोकेस्टिसिटी मैंने यहाँ पे नहीं डाली और ये नॉर्मली लोग नहीं डालते प्रैक्टिशनर्स, बट दैट्स इन थ्योरी इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड. सॉरी नहीं, आप रैंडमली पिक करेंगे तो जो एक्सपेक्टेड एरर है ना वो बैच के एक्सपेक्टेड एरर के क्लोज जाएगा. एक्सपेक्टेशन एरर पे आप निकालते हैं तो वो रैंडमनेस डालेंगे तो एक्सपेक्टेशन आएगी, किसी सीक्वेंस में आनी नहीं है. इज दैट ओके? काशिफ में एक क्वेश्चन है. इसमें जो दूसरे तरह के ऑप्टिमाइजर अवेलेबल होते हैं टॉर्च में वगैरह, मुझे उनका कुछ पता नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि वो क्या मिलते जुलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट से या कि फंडामेंटली डिफरेंट है?
ग्रेडियंट डिसेंट को अप्लाई करने के तेज तरीके हैं, तो वो ऑप्टिमाइजर वो करते हैं मिसाल के तौर पे, और उनमें से ज्यादातर ऑप्टिमाइजर जो है ना वो लर्निंग रेट को वॉच कर रहे होते हैं, यानी स्टेप्स हमने कितना ज्यादा, यानी लर्निंग रेट नॉर्मली फिक्स नहीं होता। लर्निंग रेट जैसे जैसे आप जाते, स्टार्ट में बड़े जंप्स होते हैं, फिर जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं जंप्स छोटे करते जाते हैं, फिर कई जंप्स ऐसे होते हैं जो आपको ओवरशूट करते हैं, तो आप बैक ट्रैक करके पुरानी जगह पे आते हैं और फिर छोटे जंप्स लगाना शुरू करते हैं। सो बेसिकली दे आर एक्सेलरेटेड वेरिएंट्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, एक चीज। दूसरे कुछ ये ऑप्टिमाइजर ऐसे होते हैं जैसे न्यूटन्स ऑप्टिमाइजर है या इसमें एडम्स ऑप्टिमाइजर है, जो सेकंड डेरिवेटिव्स के ऊपर रिलाई करता है। एक्चुअली ग्रेडियंट डिसेंट में आप फर्स्ट डेरिवेटिव पे पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं लॉस का विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। इसमें कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो न्यूटन्स मेथड पे बेस करते हैं, जो सेकंड डेरिवेटिव की इंफॉर्मेशन भी इंप्लॉय करते हैं, एंड इट टर्न्स आउट कि अगर आप सेकंड डेरिवेटिव की इंफॉर्मेशन भी इंप्लॉय करें, दैट इज मोर इंफॉर्मेटिव टू रीच द लोकल मिनिमम फास्टर। So all those optimizers, they are one way or the other, they are accelerated variants of basic gradient descent. ठीक है, thank you so much. And the default choice so far, again, that's a hyperparameter, but the default choice in practice is Adam optimizer. Thank you. Okay, great. So SGD, like so, and then batch gradient descent. अब आपने कोड देख के मुझे बताना है कि stochastic gradient descent में और batch gradient descent में फर्क क्या है। ये stochastic gradient descent का कोड आपके सामने है, ये बैच ग्रेडियंट डिसेंट का कोड आपके सामने है। चलें, ये बैच ग्रेडियंट, सारी इनपुट लिस्ट सेम है, आउटपुट लिस्ट सेम है। मुझे जब कहेंगे मैं आपको एसटीडी का कोड दोबारा दिखा दूंगा। ये बैच ग्रेडियंट डिसेंट का कोड है, आपने मुझे बताना है व्हाट्स द डिफरेंस। There is a very, very small difference. It's not a big difference. It's a small difference. ठीक है, सही है। Let me hold on for the other students as well. Can you tell me the difference of stochastic gradient descent and batch gradient descent? वैसे स्टोकेस्टिक में हमारे पास एक एक इनपुट जाती है और बैच में पूरा बैच जाता है हमारे पास एट अ टाइम। इनपुट कहाँ जाता है, किधर? ट्रेनिंग के लिए। अभी भी आप एक एक उठा रहे हैं, बैच में भी। बट लॉस तो कैलकुलेट पूरे बैच पे होगा। Exactly. So the only difference is between stochastic gradient descent and batch gradient descent. The only difference is कि क्या आपने पूरे बैच को देखने के बाद डिसाइड करना है कि स्टेप लेना है, यानी लॉस जो है उसके अंदर हर डेटा पॉइंट की पहले कंट्रीब्यूशन आ जाए, सारे डेटा पॉइंट्स मिलके ये बताएं कि विच डायरेक्शन इज द बेस्ट टू टेक अ जंप, या जो एक डेटा पॉइंट आपने देखा हुआ है वो बता दे कि यार इधर जंप लो, हो सकता है उधर जंप लेना किसी और डेटा पॉइंट के लिए बुरा हो। So in batch gradient descent, you define a step in the direction, यानी आप लॉस का ग्रेडियंट तब लेते हैं जब सारे पॉइंट्स के लॉस कंप्यूट हो चुके होते हैं, और वो जो ग्रेडियंट होता है दैट एक्चुअली रिस्पेक्ट ऑल द पॉइंट्स। इसलिए जो बैच ग्रेडियंट डिसेंट का लॉस की तरफ जाना होता है दैट इज मोर स्मूथ। जो ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का अगर आप देखें तो लॉस की तरफ जब वो जंप कर रहा होता है दैट इज मच मोर विगली। सही है। अब थ्योरी में बैच ग्रेडियंट डिसेंट ही अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ये स्मूथ ट्रांजिशन होती है उसकी तरफ, लेकिन ये जो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है इसका जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, अगर आप रैंडमली डेटा पॉइंट्स वन बाय वन रैंडमली डेटा पॉइंट्स को पिक करें और फौरी तौर पे अगर आप लॉस को अपडेट कर दें, पैरामीटर्स को अपडेट कर दें, तो दोनों की एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस सेम है। इसलिए लोग स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हैं बैच ग्रेडियंट डिसेंट की जगह पे। और स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का एक और भी फायदा है कि आपको ऑनलाइन लर्निंग में प्लेटफॉर्म आपको देता है कि आपके डेटा पॉइंट स्ट्रीम में आते जा रहे हैं और आप सिर्फ अपडेट करते जा रहे हैं, यानी पूरा का पूरा डेटा अवेलेबल होना जरूरी नहीं है। फ्यूचर को जो भी डेटा आएगा आपको पुराना मॉडल थोड़ा सा अपडेट करना है उन डेटा पॉइंट्स के ऊपर अपडेशंस डाल के। यू नीड नॉट टू फ्रॉम स्क्रैच, यू नीड नॉट टू ट्रेन द होल थिंग, जस्ट वेट अपडेट करने, लेकिन देयर शुड बी अ प्रूफ कि यार हम इस फॉर्म में कर सकते हैं। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट की जो थ्योरी है दैट गिव्स यू अ प्रूफ दैट you can go example by example, that's okay. Is that okay? Yes? Yes.
Okay, great. This is for mini batch. A mini batch is in between batch and a single point. It's inside. It actually applies the loss after seeing a batch of inputs. So आप बैच डिसाइड कर लेते हैं, लेट्स से 16 पॉइंट्स का या 20 पॉइंट्स का या 25 पॉइंट्स का. तो अब आप हर पॉइंट के बाद स्टेप नहीं लेते और पूरे बैच के बाद भी स्टेप नहीं लेते. यू टेक अ स्टेप आफ्टर अ मिनी बैच, एंड दिस इज मोस्ट फास्टर वेरिएंट ऑफ अप्लाइंग ग्रेडियंट डिसेंट. उसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ. स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट अगर आप अप्लाई करेंगे दैट विल बी वेरी वेरी स्लो, क्योंकि आप हर पॉइंट को देख रहे हैं, और जो रिसेंटली आपके पास हार्डवेयर अवेलेबल है वो हार्डवेयर एक ऑपरेशन से ज्यादा ऑपरेशंस करने के कैपेबल है एक क्लॉक साइकिल के अंदर. सो यू शुड अप्लाई मोर ऑपरेशंस. बैच ग्रेडियंट डिसेंट अगर आप अप्लाई करने जाएंगे तो यू विल बी हैविंग अ होल लिस्ट ऑफ डेटा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. और अगर इसकी आप वेक्टराइज्ड इंप्लीमेंटेशन देखेंगे तो बड़े बड़े मैट्रिसेस जो हैं दे विल नॉट फिट इन द मेमोरी, सो यू विल नॉट अप्लाई द वेक्टराइज्ड कोड. वेक्टराइज्ड कोड इज फास्टर. सो अ कंप्रोमाइज इज मिनी बैच. आप उतने साइज का बैच बना लें जिस पे वेक्टराइज्ड कोड तेज चलता हो और आप हार्डवेयर को फुली यूटिलाइज कर लें, एंड दैट इज एक्चुअली प्रैक्टिकली वर्क्स दी बेस्ट मिनी बैच. और मिनी बैच का साइज जो है ये नॉर्मली डिसाइड किया जाता है कि जिस मशीन पे या जिन रिसोर्सेज पे आपने चलाना है ये ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, उसके स्पेक्स के हैं, उसके लिहाज से आप मिनी बैच का साइज निकाल सकते हैं. और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स जो हैं वो आपको जब आप डेटा देते हैं और मिनी बैच का वो आप लगाते हैं तो वो बैच साइज खुद ही डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट जिसके ऊपर उसने चलना है. मिनी बैच ये भी बेस्ट है अगर आपके पास डेटा बैचेस में आ रहा हो तो. ऐसे नहीं होता. ठीक है जी, इज दैट ओके? यस, Yes. that's it. You have written your own neural network today. Congratulations. नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. हाइपर पैरामीटर्स, हाइपर पैरामीटर्स के बारे में कोई जवाब नहीं दे सकता आपको. अच्छा, इसमें काशिफ जो बैच साइज है, मिनी बैच साइज, ये भी एक्चुअली हाइपर पैरामीटर है. और That's hyper parameter, yes. तो लोग इसको खुद ही स्पेसिफाई नहीं करते, नहीं ऑटो, जैसे आप कह रहे हैं कि आर्किटेक्चर से वो कर लेता है डिटेक्ट. I mean, जो फ्रेमवर्क है वो इसको डिसाइड इस तरह से करता है क्योंकि उसके फ्रेमवर्क के ज़हन में ये नहीं है कि मिनी बैच का ताल्लुक एक्यूरेसी से क्या है. फ्रेमवर्क ये देखेगा कि मिनी बैच का साइज क्या होना चाहिए सो दैट द वेक्टराइज्ड कोड रन्स एफिशिएंटली. ठीक है, वो उसके लिहाज से आपको एक सजेशन दे देगा कि यार अवेलेबल रिसोर्सेज ये हैं, इतनी कोर्स अवेलेबल हैं, इतनी रैम है, अगर मैं इतना मिनी बैच साइज रखूं तो मैं अच्छा खासा तेज चल सकता हूं. बट देन मिनी बैच का साइज क्या होना चाहिए टू टेक अ स्टेप इन द लॉस यानी किस डायरेक्शन में आपने स्टेप लेना है. मैं आपको थोड़ा सा ना ये एनिमेशन दिखा देता हूँ ताकि ये चीज़ थोड़ी सी कंक्रीट हो जाए. ये आपका मिनिमा है बिल्फर्स. मिनिमा की तरफ जाते वक्त अगर आप स्टेप्स लेंगे stochastic gradient descent तो maybe it goes like this, very wiggly kind of, क्योंकि हर डेटा पॉइंट जो है वो गाइड करी जा रहा है कि इधर स्टेप लो, दूसरा डेटा पॉइंट आके कहता है नहीं इधर लो, नहीं इधर लो, नहीं इधर लो, एंड सो ऑन. अगर आप बैच ग्रेडियंट डिसेंट की तरफ जाएंगे these transition will be much smooth. अगर आप मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट की तरफ जाएंगे तो these kind of transitions are a compromise. अब आप अगर ये देखना चाहते हैं that the transition should not be compromised, then बैच साइज आपके लिए एक हाइपर पैरामीटर बन जाएगा, क्योंकि you are also thinking batch size not in terms of only efficiency but also in terms of कि ये मिनिमम की तरफ जाते हुए कितना स्मूथ है. अगर आप इस पैरामीटर को भी देखेंगे, अगर आप इसको नहीं देखना चाहते then it is no longer a parameter, then it is no longer a hyper parameter, then it just deals with कि मैं साइज कितना रखूं given the available resources so that the efficiency can be increased, the computational efficiency. थैंक्स. ओ ये जी तो सब पे अप्लाई करने के बाद एंड पे एच रिटर्न कर रहा हूँ. वो एच एंड वाला वाई हैट ही है, वो एंड वाला जो वाई हैट है. ये जी बना जी के ऊपर, ये जी बना ना जी के ऊपर, ये हुआ तो ये एच हो गया. एच अगली दफा फिर अगले डब्ल्यू के साथ लगा. हाँ जी, वो एंड वाला रिटर्न कर रहा हूँ. सो फॉर सो गुड.
अगर मुझे 5 मिनट और देते हैं तो मैं आपको पाई टॉर्च के अंदर एक क्लासिफिकेशन एग्जांपल भी करा देता हूं यूजिंग फुल पाई टॉर्च लाइक, या ब्रेक ले लें, इट्स अप टू यू। जी कर लें, ऑनलाइन वाले लोग थके तो नहीं है, एक छोटी सी एग्जांपल कर लें। जी सर कर जी लें। कर लें बिल्कुल। Great. So now we are going to do a little example in which we will be applying batch gradient descent using fancy optimizers and all that stuff, which will be used, all these kind of things will be used automatically that we have seen so far. So input dimension again 10, this data is again dummy. So अब मैंने करना ये है कि मैंने इन डेटा के बैचेस बनाने हैं, यानी मेरे पास 1000 है, मैंने डेटा के मिनी बैचेस बनाने हैं और मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करना है, ठीक है। हाउ कैन आई डू दैट इन PyTorch? So first of all, I will convert my data into torch tensor. Then I will use a tensor data set class from torch. I will use that and I will make this X. And then I will use this data loader class and give the batch size, और बैच में डेटा को शफल करना है, हाँ जी करना है, ड्रॉप लास्ट। अगर मैंने 16 के बैचेस बनाने हैं तो एंड पे जो रिमाइंडर रह जाएगा 16 से कम, उसका क्या करना है, उसको ड्रॉप करना है, फेंक देना है, ठीक है। अगर ड्रॉप नहीं करना तो फिर वो उसको एडजस्ट करेगा और साइजेस हो सकता है बैच साइज से छोटे बनाना शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपने 16 का बैच साइज दिया हुआ है और आपका डेटा जो है वो 16 का मल्टीपल नहीं है, तो एंड पे जो बनेंगे उसको ड्रॉप, उन पॉइंट्स को ड्रॉप करना ही नहीं, और वो रैंडमली चूज होंगे क्योंकि शफलिंग है। अगर आपने ड्रॉप लास्ट ट्रू नहीं किया हुआ तो फिर वो बैच साइज 16 से कम करके जो भी मल्टीपल्स में बनेगा उसको बना देगा। सो फिर वो अपने तरीके से करेगा, उसने कहना ड्रॉप तो करना नहीं, हर एक को यूटिलाइज करना है, सो लेट मी मेक द बैच साइज बाय माई सेल्फ, ठीक है। तो इसलिए अच्छी प्रैक्टिस है ड्रॉप लास्ट ट्रू रखें, थोड़ा बहुत रिमाइंडर होगा तो उसको जाने दें, डजंट मैटर। यस, ये मैंने न्यूरल नेटवर्क डिजाइन किया है। पहली लेयर 200 यूनिट्स, अब मैं उसका यूज कर रहा हूं तो नाउ आई एम फ्री, आई नीड नॉट टू राइट ऑल दीज थिंग्स। 200 यूनिट्स पहली लेयर में, नॉन लिनियरिटी रैलू ये एक नॉन लिनियरिटी है, वो मैक्स वाली 0 और मैक्स। बैच नॉर्मलाइजेशन ये क्या होती है, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं, ड्रॉप आउट क्या होता है ये भी मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा, फिलहाल आगे चलते हैं। don't pay attention to dropout right now. The second layer has 100 units and the second layer accept 200 inputs from the previous one. Second layer के बाद मैंने जो non-linearity लगाई है, that is a 10H. I don't know why, but I have applied this one. Third layer accepts 100 inputs from the back and produces only one output. And finally, वो जो भी one output है उसके ऊपर मैं sigmoid लगा देता हूँ, which gives me a probability of a positive class. That's my neural network, whole neural network in PyTorch. Optimizer, क्या मैंने plain gradient descent लगाना है? There are accelerated variants, faster variants than gradient descent, and one choice is Adam. There are so many other choices as well. So torch.optimizer.adam, model.parameters, learning rate ये वाली है। So ये मैंने ऑप्टिमाइजर सेट कर दिया, मैंने कोई भी लॉस फंक्शन चूज कर सकता हूँ, देयर आर सो मेनी आउट देयर। क्लासिफिकेशन के लिए, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस इज रफली आइडियल। एंड देन दिस इज माय ट्रेनिंग प्रोसीजर फॉर ईच एपॉक फ्रॉम द डेटा लोडर, पिक द बैचेस, अप्लाई ऑन बैचेस एंड डू ऑल दैट स्टफ। अब ये सारा कुछ वही काम ऑटोमेटिकली करेगा जो आप कर रहे थे अगर ये एरर नहीं आता तो। ये क्या हुआ यार, साइज का क्यों मसला आने नहीं चाहिए। लॉस फंक्शन, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस। एक मिनट यार, ये मैं लॉस फंक्शन जरा ट्रेस कर लूँ, इसमें क्या मसला है।
अभी मैं जुगाड़ लगाने लगा हूँ, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो बस फिर नहीं। एनीवेज ये कोई एरर है, इसको बाद में देख लेते हैं। फिलहाल मैं जस्ट आपको फ्लो बता दूं, मैं ये फिक्स कर लेता हूँ एरर, डजंट मैटर, पता नहीं कब का कोड लिखा हुआ है लेकिन आई विल फिक्स इट। ये लॉस फंक्शन है, ये ऑप्टिमाइजर को 0 ग्रेड पे करना है बैकवर्ड, ये स्टेप जो है ये वही ग्रेडियंट डिसेंट स्टेप है, ये लेना है एंड कीप ऑन मूविंग एंड यू हैव दिस ट्रेनिंग एंड आफ्टर दिस ट्रेनिंग you can now predict from this model using this simple. Okay. काशिफ इसमें ये जो टेंसर्स जो है जी, ये नंपाई अरेज से ऊपर कोई और चीज़ ऑफर करते हैं? मतलब मुझे ये अभी तक पता नहीं चल रहा कि जो टेंसर्स हैं वो उनमें क्या एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं। टेंसर डेटा स्ट्रक्चर इसका है पाईटॉर्च का, जो numpy के ऊपर ही बिल्ड हुआ है। अब जो पाईटॉर्च के अंदर डिफरेंट क्लासेस लिखी हुई है ना, वो इन टेंसर के ऊपर ऑपरेट करती हैं, दैट्स ऑल। तो बाकी numpy के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई फंक्शनैलिटी ये इटसेल्फ देते होंगे ना। मिसाल के तौर पे डेटा लोडर क्लास है ना, तो उसने टेंसर में कन्वर्जन उसको चाहिए, क्योंकि टेंसर जो है ना वो उसकी अपनी क्लास है उसकी पाईटॉर्च की। मुमकिन है कोई एडिशनल मेटा डेटा वो उसमें रखता हो जो टॉर्च के पैकेजेस के लिए रिक्वायर्ड हो। अदरवाइज टेंसर के ऊपर, यानी टेंसर को अगर मैं मल्टी डायमेंशनल अरे देखूं तो टेंसर के अंदर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं है जो numpy अरे के ऊपर ना हो। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सो ये एक छोटा सा एरर है, इसको देख लेते हैं खैर बाद में, बट दैट्स द ओवरऑल फ्लो दैट वर्क्स। सॉरी, 3 लेयर्स हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। नहीं, लीनियर लेयर तो वो होती है ना जो जिसने सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लेना है, दैट्स अ लीनियर लेयर। उसके बाद आपने उसके बाद एक्टिवेशन बाद में लगानी होती है। सो ये डॉट प्रोडक्ट लेयर, एक्टिवेशन, डॉट प्रोडक्ट, एक्टिवेशन। सो ये दोनों मिलके एक लेयर डिफाइन करते हैं, ये दोनों मिलके एक लेयर डिफाइन करते हैं, ये दोनों मिलके एक लेयर डिफाइन करते हैं। एक मिनट, सॉरी, हाँ जी, साइजेस भी फर्क है। अच्छा जी, अब ब्रेक ले लें 10-15 मिनट की। आई वांट टू डिस्कस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स टुडे एज वेल, अगर आप एग्जॉस्टेड नहीं हैं तो। अगर एग्जॉस्टेड हैं तो वी कैन शिफ्ट दैट ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर एज वेल। मैं एग्जॉस्टेड नहीं हूँ, आई एम फ्रेश, योर चॉइस। हाँ, मेजर टॉपिक जी। ऑनलाइन जो लोग बैठे हुए कितने ऑनलाइन यार, देखें तो सही, ये ऑनलाइन 2 लोग बैठे हुए हैं, सारिम एंड अदीला। So what do you think, should we cover RNNs today or should we have another fresh lecture on that? I think fresh will be better in a sense कि ये सारा digest हो जाएगा। बाकी जो लोग अगर अभी भी करें तो I am ready for it। ठीक है, मेरा ख्याल एक लेक्चर और इस पे कर लेते हैं, बिकॉज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स को मेरा ख्याल है कि बड़ी तेज़ी से नहीं देखना चाहिए, थोड़ा सा उसको डिटेल से देखना ज़रूरी है, क्योंकि NLP में वो हम चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, ये मैं कोड इंशाल्लाह शेयर कर देता हूँ आपके साथ, आप अपने तौर पे भी इस कोड को देखें। और ये मैं बग इसको फिक्स करता हूँ अपने तौर पे बैठ के, जैसे ही बग फिक्स होता है। ये चल रहा था, आई डोंट नो कि बग कहाँ से आ गया, लेकिन हो सकता है कोई वेरिएंट का इशू हो, मेरे लैपटॉप पे फ़र्क वेरिएंट है, आई डोंट नो। ये इशूज़ भी बहरहाल आ जाते हैं पाइथन में। So, मैं देख ये वाला एरर मुझे आया था काशिफ, ये वाला ना आपका लॉस फंक्शन BCE वाला, हाँ जी, इसमें ये आता है। जो डायमेंशंस है ना वो आखिरी वाली y की टारगेट की और जो आपको आ रही है उसको जरा चेक कर लीजिएगा, जो आखिरी लेयर से आ रही है और जो टारगेट से आ रही है। हाँ, यही फ़र्क आ रही हैं, यही हाँ, फ़र्क आ रही हैं। ये इसमें आता है। अगर दूसरा कोई हो लॉस फंक्शन तो वो एरर नहीं दे रहा होता, ये चेंज करते हैं, इसमें आता है ये। मसलन अगर मैं कर दूं, वो एक और होता है नेगेटिव ये वाला लॉस, अगर मैं ये कर लूं बिलफर्ड्स, ट्राई कर। नहीं आ रहा है यार इसमें। अच्छा, फिर ये एक्चुअली आया था, मैंने इसको किसी तरह फिक्स किया। ओह, एक्सपेक्टेड स्केलर टाइप डबल, ये फ़र्क तरह का है। और ये यार ना, मैं इन तरह के काफ़ी सारे एरर से ना निकलता रहता हूँ, यानी ये आते रहते हैं मुझे ना, तो मैं फिक्स कर देता हूँ, लेकिन वो अगेन मैं वो नोट नहीं करता कि ये क्यों आ रहा था। तो ये मैं दोनों एरर से बड़ी अच्छे तरीके से निकला हुआ हूँ, लेकिन अब मुझे कोई तकरीबन 1-1.5-2 महीने हो गए इस कोड को लिखे हुए ना, तो मुझे दोबारा से इसको फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन
इट इज़ फिक्सेबल, नॉट अ बिग डील। ये जो वाइश है यहाँ पे उसकी टाइप कास्ट कोई डॉट डबल कर करके ना, तो मेरा ख्याल है ये हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड स्केलर टाइप लॉन्ग बट फाउंड फ्लोट। एक मिनट करके देखते हैं, यहाँ पे था जी, हाँ, टॉर्च डॉट लॉन्ग। टॉर्च हैज नो एट्रीब्यूट लॉन्ग। अच्छा, एनीवेज यार ये कर लेंगे फिक्स, इट्स नॉट अ बिग डील। एक और छोटी सी चीज देख लें जाते जाते। ये एक और फाइल मैंने रखी हुई थी, मुझे याद नहीं है फाइल कौन सी है। जस्ट लेट मी सी दैट फाइल है क्या, सो दैट ओके ये टॉर्च विजन से है। ओ ये क्लासिफिकेशन एग्जांपल है। कर ना लें, 5 मिनट लगेंगे। इमेज क्लासिफिकेशन श्योर कर लो। अगर चल गई तो, ओ अभी तक तो चल रही है। ओ ये डेटा डाउनलोड करेगा यार, C410 डेटा है, ये डाउनलोड करेगा। ये वो जो अवेलेबल डेटा और फैंसी चीज़ें हैं ये डाउनलोड कर रहा है। सो एनीवेज जब तक ये डाउनलोड करता है हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये कोई डेटा है जो इमेज क्लासिफिकेशन का डेटा है और उसमें 10 क्लासेस हैं, हर इमेज को एक अपनी क्लास पे मैप करना है। तो हम ज़रा आगे चलते हैं। टॉर्च विजन में थोड़ा सा ये डेटा सेट के मुख्तलिफ बैचेस वगैरह बना लिए, ये डेटा लोडर से बैचेस बना लिए, ये हमने उसका वो बना लिया मॉडल। उसके बाद ये लॉस फंक्शन, ये ऑप्टिमाइज़र। ऑप्टिमाइज़र के साथ एक और मज़े की चीज़ होती है स्केजुलर। ये मैंने वो लास्ट में नहीं बताया था। ये स्केजुलर होता है कि लर्निंग रेट को किस तरह से एडजस्ट करना है थ्रू आउट ना। एक ऑप्टिमाइज़र है वो चल रहा है, वो ग्रेडियंट्स और सेकंड ग्रेडियंट्स यानी हेजियन मैट्रिसेस वगैरह कंप्यूट कर रहा है। एक स्केजुलर है जो ये बता रहा है कि यार लर्निंग रेट जो है उसको बढ़ाना है, कम करना है, कितना बड़ा स्टेप लेना है, छोटा स्टेप लेना है। सो नॉर्मली ऑप्टिमाइज़र के साथ एक स्केजुलर भी अटैच होता है। सो ये स्केजुलर अटैच किया हुआ है इसके साथ। और उसके बाद जस्ट 2 एपॉक्स के लिए मैंने इसको चलाया और बाकी सारा कोड वही है जो आपने देखा हुआ है। और ये बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट सॉर्ट ऑफ C410 डेटा सेट पे ये मॉडल ट्रेन हुआ हुआ जो बड़ा बेहतरीन है। एनीवेज ये टाइम लेगा। ठीक है, ये फाइल भी मैं आपको दे देता हूँ। गिवन कि आपने पिछली फाइल देखी हुई है, दिस विल नॉट बी अ बिग डील टू गो थ्रू दिस, बट ये मैंने आपको वो दिया है कि जो टॉर्च विजन का डेटा सेट आपने यूज करना हो, अवेलेबल मॉडल्स, अवेलेबल डेटा लोड कैसे करना है वगैरह वगैरह। सो सर्टन फैंसी थिंग्स इन पाइटॉर्च। काशिफ, ये जो मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं जैसे टॉर्च के साथ दूसरे हैं जिस तरह टेंसरफ्लो या ये, तो इनमें कैसे कंपेयर करते हैं आप? या अगर हमने सीखना है जस्ट गेटिंग इनटू डीप लर्निंग, तो क्या एक ही फ्रेमवर्क पे फोकस रखें या कि मुख्तलिफ देखने चाहिए? गेटिंग इनटू डीप लर्निंग मेरा ख्याल है आसान है पाइटॉर्च के साथ। पाइटॉर्च काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं करता, यानी आपको काफ़ी सारी लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ता है कुछ चीज़ चलाने के लिए पाइटॉर्च में। और वो जो कोड लिखना पड़ता है ना, दैट एक्चुअली इज़ मेकिंग अ फ्लो व्हाट इज़ हैपनिंग। सो पाइटॉर्च जो है ना वो एकेडेमिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इसकी जो कह लें कि आप एक्सप्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा है टुवर्ड्स एकेडेमिया लर्निंग एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ। जब बात आती है ना डिप्लॉयमेंट की, यानी आपने प्रोडक्ट बनानी है और उसको डिप्लॉय करना है, तो डिप्लॉयमेंट सपोर्ट रिलेटिवली बहुत ज़्यादा है टेंसरफ्लो में। बहुत थोड़ी लाइंस आप लिखते हैं और डिप्लॉय करने के लिए ना उसकी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। यानी टेंसरफ्लो इज़ मच मोर काइंड ऑफ हाई लेवल इन टर्म्स ऑफ के इंफॉर्मेशन हाइडिंग उसमें काफ़ी ज़्यादा है। सो आप ये एक ट्रेंड देखेंगे नॉर्मली, अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री ज़्यादातर टेंसरफ्लो यूज़ करेगी और एकेडेमिया यानी यूनिवर्सिटीज़ और आगे पीछे ये लोग ज़्यादातर पाइटॉर्च यूज़ करेंगे। तीसरा एक और फ्रेमवर्क रहा है मैक्सनेट, अपाची की तरफ से ना, वो क्लेम कर रहे हैं कि वो टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च दोनों की जो डेफिशिएंसीज हैं उन दोनों को उन्होंने एक में टारगेट किया है। दैट इज़ बेस्ट फॉर डिप्लॉयमेंट, दैट इज़ बेस्ट फॉर एकेडेमिया, और वो इन दोनों से बहुत ज़्यादा फास्ट है। लेकिन इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों अभी मैक्सनेट पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुए। अमेज़ॉन ने मैक्सनेट को एक्वायर कर लिया हुआ है, उनके ऊपर पूरी डीप लर्निंग की उन्होंने किताब लिख दी हुई है और वो बड़ी फेमस चल रही है। और इस वक्त जो CMU के अंदर जो टेक्स्ट बुक फॉलो हो रही है वो मैक्सनेट की फॉलो हो रही है डीप लर्निंग के अंदर।
सो यानी इनके कंपैरिजंस जो है ना, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये लगा, क्योंकि मैंने टेंसरफ्लो में भी थोड़ा सा काम किया हुआ है, मैक्सनेट पे भी बहुत थोड़ा सा काम किया हुआ है, लेकिन जब से मैं टॉर्च पे शिफ्ट हुआ हूँ, इट मेक्स मच मोर सेंस कि व्हाट इज़ हैपनिंग, डिबगिंग करना, कहाँ पे जाके मसला आ रहा है। टेंसरफ्लो में ये चीज़ें रिलेटिवली मुश्किल थी, टेंसरफ्लो 2.0 तक, उसके बाद उन्होंने सपोर्ट डाल दी हो, मुझे नहीं उसका पता, लेकिन जनरल यही है कि PyTorch, नॉर्मली एकेडेमिया पीपल यूज PyTorch फॉर रिसर्च पर्पसेस, फॉर लर्निंग पर्पसेस, and for deployment people use TensorFlow, and MaxNet has powers of both, but mostly people have not shifted to MaxNet yet. ठीक है, थैंक यू सो मच। चलें जी, ये क्लास अब आज हम ख़त्म करते हैं। इसकी ये इंशाल्लाह रिकॉर्डेड जो है वो मैं आपको दे दूंगा, और नेक्स्ट क्लास अनफॉर्चुनेटली इस वीक में तो हमारी नहीं है, नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट ट्यूसडे को है। उसमें मैं आपको रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है वो पूरा इंशाल्लाह चला के दिखाऊंगा। PyTorch के अंदर हम स्क्रैच से भी लिखेंगे RNN, ताकि हमें RNN की समझ आए, और फिर हम RNN PyTorch के अंदर चलाएंगे ताकि हमें अपने प्रोजेक्ट पे काम करना आए, और फिर वहाँ से ऑनवर्ड्स हम दोबारा NLP पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर भी बेसिकली डीप लर्निंग पे ही होगा, जिसमें हम RNN पढ़ेंगे, और इसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। कुछ एक दो चीज़ें रह गई हैं, ड्रॉप आउट वगैरह, अर्ली स्टॉपिंग और बैच नॉर्मलाइजेशन, इस तरह की चीज़ें रह गई हैं, वो भी हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। ऑब्वियसली ये एक लेक्चर में ये सारी चीज़ें कवर करना मुश्किल तो है, लेकिन मैंने वो चीज़ें आपको बताई हैं जो प्रैक्टिकली यूज़फुल हैं, और जितना पता होना है NLP के लिए आपके लिए फ्रूटफुल है। ऑब्वियसली ज़्यादा पता होना हमेशा बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट इतना पता होने से आपको पता होगा कि जो मॉडल्स आप लिख रहे हैं, जो कोड आप चला रहे हैं, अगर किसी का भी कोड आप देख रहे हैं, तो आप कोड की अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट हो जाएगी कि यार ये कर क्या रहा है, सो दैट आई कैन मॉडिफाई द कोड। सॉरी जी, अनसुपरवाइज मॉडलिंग नेक्स्ट क्लास में मुझे याद कराइएगा। एक्चुअली मैंने अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में भी बताना है आपको, मुझे एक दफ़ा याद कराइएगा, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। 2-1 मिनट में डिफरेंस बता देना बेहतर है, वो मैं बता दूंगा इंशाल्लाह जो मुझे पता है। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, ये अच्छी बात है, डाउनलोड हो जाए, ये नेक्स्ट टाइम चल पड़ेगा तो ठीक है। बहरहाल मैं कोड आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और वो बग जो है उसको भी मैं देखता हूँ। आप भी अपने तौर पे देखें, ये बग इसी तरह के हैं, मैंने भी ऐसे ही कभी कभार बैठ के ढूंढे थे, जिस तरह ये सारिम कह रहे हैं कि वो इस तरह का मसला आया था, मुझे भी आ रहे थे, तो मैं भी देखता हूँ, आप भी देखें अपने तौर पे। बहरहाल मैं कोड फाइल्स और ये वीडियोस वगैरह आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। स्टॉप रिकॉर्डिंग।